Good afternoon, friends. Let us proceed ahead. We're gonna kickstart with advanced accounts. So we have done good number of chapters in Group 1 accounts. So it is extension of what you people have done in the Group 1 accounts. I expect quick silence. Quick. So what we have learned in the Group 1 accounts, this is gonna be extension of it. In terms of level of difficulty, I will say Group 2 accounts is slightly more difficult than the Group 1 accounts. But in terms of, if I look at interesting chapters from accounting point of view, Group 2 is way more interesting. Accounts is not a new subject. You people have already dealt with it. So just look at the syllabus. ICS just divided into 4 parts. As understood in the Group 1, accounting standards is going to carry highest possible weightage. So you have part A, which is accounting standards. 20 to 26% of the marks are on accounting standards. So 12 standards. Number of standards are much more in Group 2 as compared to Group 1. Plus Group 1 had AS1, AS2, which were as good as no standard. They did not have any standard as such. So वो छोड़ दो, 12 स्टैंडर्ड्स है तुमको. हर एक स्टैंडर्ड में भर भर के कंसेप्ट है. AS4 और AS5 छोड़ दिया तो सबके सब बड़े हैं. So you have 12 standards. I'm not going to waste the time. ये स्टैंडर्ड ये है, ट्रेलर वगैरह देने का कोई जरूरत नहीं है. रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में देखेंगे. Then you have company accounts. Highest return on investment if you are gonna get, it is on category B chapters. ESOP buyback are medium size ones. Equity shares with the voting right. एक ही question है, वो 6 बार repeat हुआ है. That is the level of the institute. I can do nothing about it. So 6 times it has been repeated. Then you have few on amalgamation, reconstruction, liquidation, company accounts. Then you have banking companies. Unfortunately, you do not have any analytical part of banking company. It's a format like Schedule 3, but we will try to do some analysis in that, banking and NBFC. And then you have CFS and partnership. बहुत अच्छे खासे चैप्टर्स है. बोलो क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, कहां से चालू करना है? ESOP बायबैक छोटे वाले हैं, बट बायबैक करना है. बायबैक ESOP ऐसे छोटे चैप्टर, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड सिखाऊं, आज के आज खत्म हो सकते हैं. बैंकिंग फॉर्मेट है, फॉर्मेट पहले इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर दे. CFS का तुम्हारा लेवल नहीं है. इंटरेस्टिंग तो है, CFS पे इंटरेस्टिंग है. Whatever you want. हाँ, या एज पर मी ओनली, अल्टीमेटली तो वही होगा. So I decide to go ahead with accounting for buyback. बहुत टफ भी नहीं, बहुत इजी भी नहीं, मीडियम लेवल का चैप्टर. A large part of this chapter you people have already done in the law, but I'll have to revise it. Legal aspects of buyback you have already done in section 68 of the Companies Act, but we have to learn. But before I go to the section 68, let me explain what is a buyback. थोड़ा ज़्यादा explain करता हूँ, please listen करना. Accounting मतलब चैप्टर देखो तो जर्नल एंट्री है, 5 या 6 जर्नल एंट्रीज है. आप कितना करते हैं उसके ऊपर है. नरेशन है और कुछ कैलकुलेशन है. तो वैसे मतलब एग्जाम ओरिएंटेड देखे तो आज का चैप्टर खत्म हो चुका, 2-2.5 घंटा काफ़ी है इसके लिए. बट मुझे 2-3 लेक्चर्स लगेंगे कम से कम, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू लिसन.
और ये चैप्टर समझोगे तो तुम्हारा पूरा, अभी तो नहीं हो सकता, डेट चला गया। एनीवन, मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था, तुम्हारा पूरा इंटरमीडिएट का फी तुमको वापस मिल सकता है अगर तुमने वो ट्रेड लिया तो। एनीवन टुक? जाइडस का मैंने आपको एक ट्रेड बोला था, मतलब लेक्चर चालू नहीं थे, ग्रुप 1 के लेक्चर्स के बाद 2-4 लोग, क्वांटिटी में किया होगा तो ही पैसा वापस मिलेगा, क्वांटिटी नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली पैसा नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत पैसा कमा सकते हो आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न करके, बहुत सारा इंसाइट मिलता है, लोगों का कैरेक्टर समझना का भी तरीका तुमको समझेगा इस चैप्टर के अंदर। ये थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ बच्चे हो गए जिनको ये उतना पूरी तरीके से समझ में ना आए, पहले बार मार्केट अगर आपने जिंदगी में पहली बार देख रहे होगे तो वैसे टाइप का बच्चा है तो उसको थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट टाइम दे दो, घटिया से घटिया डाउट पूछो। हाँ, टारगेट क्या? गारगेट है नहीं, लेकिन वो डाउट नहीं पूछेगा, मालूम है। तो डाउट जितना पूछना है पूछो, लेकिन मैं जब बोलूंगा तब पूछना, कंसेप्ट सुनने को तैयार हो जाना। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बट बायबैक जो रियल लाइफ में होता है वो शेयर्स का ही होता है, बाकी चीजों का बायबैक उतना होता नहीं। बाकी चीजों मतलब डिबेंचर्स का बायबैक हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट नॉट अंडर दिस सेक्शन, अंडर द डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर होल्डर्स के साथ आप ट्रस्ट डीड एंटर कर सकते हो और कंपनी खुद अपने डिबेंचर्स खरीद सकती है। ये ऑलरेडी ग्रुप 1 में कवर हो चुका है। अगर याद होगा तो ग्रुप 1 के अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर था, उसमें तुमने ओन डिबेंचर्स खरीद लिए थे एंड यू कैंसल्ड ओन डिबेंचर्स इमीडिएटली। मैंने आपको 4 साल लगे थे मुझे वो चैप्टर चेंज करने के लिए। पूरा एक लेक्चर मैंने हिस्ट्री बोला था कि वो चैप्टर कैसा था और किस फॉर्म में। आज के फॉर्म में बहुत ठीक ठाक है, 4 साल पहले इसको दर्द होता था ये सिखाने के लिए। तो वहां पर आपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किया था, कंपनी बाइंग ओन डिबेंचर्स, ये हमने ग्रुप 1 में ही मतलब समझ लिया था। ग्रुप 2 में सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी वर्ड के अंदर शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, बट यहां पर हम डिबेंचर्स का बात नहीं करने वाले क्योंकि सेक्शन 68 में कंपनी लॉ ने अभी तक डिबेंचर स्पेसिफाई नहीं किए, उसके लिए सेक्शन चाहिए भी नहीं एक्चुअली। क्यों? कंपनी का जो कैपिटल होता है वो इक्विटी से आएगा, डेट से आएगा। इक्विटी इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, ऑब्वियसली इक्विटी इज नॉट समथिंग विच इज अ शॉर्ट टर्म। जब तक है कंपनी तब तक है इक्विटी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो इक्विटी इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, इक्विटी इज नॉट समथिंग विच इज रीपेएबल, डेट इज समथिंग विच इज रीपेएबल। तो डेट को आपको वापस करना ही है, तो डेट के लिए बायबैक का सेक्शन रख के फायदा भी क्या, क्योंकि डेट डिबेंचर्स जो होता है वो आपको वापस करना ही हो, और वैसे भी डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट में आप रीपे करते हो। कोई भी जब इन्वेस्टर होता है वो लमसम डिबेंचर्स नहीं होते, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आप हर साल पे करोगे, या डिबेंचर्स के ऊपर का जो प्रिंसिपल है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करोगे, हाँ ना? आई कांट हियर। तो यू आर गोना रीपे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एज सच। बैंक लोन भी आप रीपे करने वाले हो, तो वहां पर बायबैक नाम का कॉन्सेप्ट, कंपनी परचेसिंग इट्स ओन डिबेंचर्स, लिखने का जरूरत नहीं है। इसलिए सेक्शन 68 जो है वो आज की तारीख में सिर्फ शेयर्स का बात करता है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी बायबैक हो सकता है, बट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही डिस्कस करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डिबेंचर्स। क्यों? प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों बाय देयर नेचर इटसेल्फ आर रिडीमेबल। जो बच्चा बाय ऑन इट्स ओन होमवर्क करता है, जो बच्चा ऑन इट्स ओन टेस्ट लिखता है, जो बच्चा ऑन इट्स ओन पढ़ाई करता है, उसको पापा के थ्रू मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती है, उसको पेरेंट ग्रुप का कोई एडवांटेज नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो बच्चा कर ही लेता है, पढ़ाई कर ही लेता है। लेकिन जो बच्चा सिंसियरली पढ़ाई नहीं करता है, लेक्चर्स बंक मारता है, या जिस बच्चे के ऊपर पापा को डाउट होता है
वहां पर रिपोर्टिंग का जरूरत पड़ता है। तो वैसे इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स को बायबैक की जरूरत है बिकॉज इक्विटी शेयर्स का टेन्योर नहीं है। हैव यू हर्ड कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 years? You might buy equity shares with the objective of holding them for 10 years. That is investors tenure for which you want to hold. Instrument, equity as an instrument, does it have tenure? इक्विटी को कोई ऐसा पीरियड होता है क्या? बैंक लोन पीरियड होता है, डिबेंचर्स पीरियड होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का टेन्योर होता है। कैन यू इशू परपेचुअल डिबेंचर्स? अरे कैन यू इशू परपेचुअल डिबेंचर्स? आंसर इज नो। परपेचुअल मतलब फॉर एवर, रिडीम ही नहीं हुए कभी। कैन यू इशू परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स? नो। तो उनमें रिडेम्पशन का प्रोविजन जो है वो बाय डिफॉल्ट है। There is a redemption of preference shares, section 55 ग्रुप 1 अकाउंट्स में था। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, there is a section 71 ऑलरेडी देयर। तो जरूरत नहीं है, तो स्पेसिफिक जरूरत जो है वो इक्विटी के पर्सपेक्टिव से है, वहां पर सेक्शन 68 किया हुआ है। बट 68 के साथ साथ आपको बाकी के 2-3 सेक्शन भी लर्न करने हैं हमें। 67 है, 68 है। अगर आपको याद होगा तो ये सब कुछ एक्सप्लेन किए थे मैंने, लॉ के अंदर किया था हमने ये। तो 67 पहले बोलता है तुम बायबैक कर ही नहीं सकते हो। फिर आप बोलेगे सर चैप्टर क्यों सिखा रहे हो? हाँ, लिखने का स्टाइल है। पहले बोलता है तुम बायबैक कर ही नहीं सकते। जैसे पापा ने तुमको बोला होगा 11 दिन तुमको पढ़ाई करने का, कुछ टाइम पास करने का ही नहीं, पूरा दिन पढ़ाई करने का। फिर तुमने पापा थोड़ा पिकनिक, कुछ तो टाइम पास करने को तुमने बोला होगा, और फिर पापा ने कुछ अलाउ किया होगा। तो वैसे सेक्शन 67 है, वो बोलता है तुम बायबैक कर ही नहीं सकते हो। कंपनी कैन नॉट परचेस इट्स ओन शेयर्स, अलाउड ही नहीं है। बट क्या है ना, कुछ लोग होते हैं, कंपनी लोग बोलता है कि हमें बायबैक करना है। क्यों करना है, क्या करना है, एक्सप्लेन करता हूं, हैव पेशेंस। ओके, बायबैक का मतलब तो समझा होगा सबको। कंपनी परचेसिंग इट्स बैक। क्यों बोला? पहले कंपनी ने ही ये शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे। अब कंपनी क्या कर रही है, उनको बाय कर रही है, परचेस कर रही है। तो 68 बोलता है हाँ आप बायबैक कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्टन रूल्स और सर्टन कंडीशंस। वो 68 में कंडीशंस देके रखे। फिर 69 बोलता है हाँ तुमने बायबैक किया, लेकिन हमारा कैपिटल इंटैक्ट रहना चाहिए। कैपिटल इंटैक्ट रहने के लिए हम सीआरआर क्रिएट करने का बात करेगा। किधर बात करेगा वो सीआरआर क्रिएशन का बात? सेक्शन 69 के अंदर। और सेक्शन 70 तुम्हारे कैरेक्टर की बात करेगा। तुम्हारा कैरेक्टर अगर ढीला है, कैरेक्टर में कुछ डिफेक्ट्स है, तो तुमको हम बायबैक करना अलाउड नहीं करेंगे, विच इज ओके। मतलब यू आर डन सर्टन डिफॉल्ट्स। तुमने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं दिया है, तुमने उनका इंटरेस्ट पे नहीं किया, और आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हो। मतलब घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कहीं होटल में जाके फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए तुम्हारे पास पैसा है। एग्जाम्पल, खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन तुम सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए तुमको कहीं पे जाके खर्चा करना है। बात वही होगी ना। मतलब तुम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं दे रहे, तुम्हारे डेट के जो ऑब्लिगेशंस है वो तुम पूरे नहीं कर रहे हो, और तुम इक्विटी होल्डर्स को पैसा दे रहे हो। इसे सीए का सिलेबस तुम्हारा पूरा खत्म नहीं हो रहा पढ़ाई करके, मेरे को बीकॉम करने का है। या चलो बीकॉम छोड़ दो, सीए का पढ़ाई तुम्हारा ठीक से नहीं हो रहा है, और तुम बोलते हो मेरे को सीएफए करने का है। पहले तुम्हारा सीए नहीं ठीक से हो रहा है तेरे से, और मेरे को और एक चीज करनी है, क्यों? मस्ती। तो वैसा ही सेक्शन 70 है। 70 बोलता है अगर तुमने कुछ डिफॉल्ट्स किए हैं, स्पेशली विथ रेफरेंस टू डेट, तो हम आपको मतलब बायबैक अलाउड नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, कुछ केसेस में प्रोहिबिशन डालेंगे हम। समझा? तो अब हमें ये सेक्शंस को थोड़ा सा बाद में जाते हैं। ये सेक्शंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों को, अकाउंटिंग एंट्रीज दोनों को मैं बाद में जाता हूं। पहले थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड दिमाग समझ लेते हैं। कंपनीज बायबैक करते क्यों है? बायबैक मीन्स कंपनी बाइंग इट्स ओन शेयर्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। हो गया, बस ये हो गया। और 5 एंट्री किए, तुम सीए बन जाओगे। तुमको अभी क्वेश्चंस है ना सब क्लास बुक में, तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे सब।
दो टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक हिस्ट्री में। 1999 में एक कॉन्सेप्ट आया था कंपनी लॉ के अंदर, तब से लेके आज तक इंस्टीट्यूट को दो ही क्वेश्चन करते आए, और उसके बाद भी बच्चे साले फेल होते हैं। कैसे वो नहीं मालूम, वैरायटी बिल्कुल नहीं यहाँ पे, दो तीन क्वेश्चंस तो मैं उतने करूंगा, बाकी 10-12 जितने भी रहेंगे। इसमें कितने क्वेश्चंस है? बायबैक में 10 क्वेश्चंस है। 3:7 का रेशो फॉलो करते हैं हम। क्या वही वैरायटी है रे? और क्या कर करके भी क्या करोगे तुम? पहले समझ लो, धंधे का लॉजिक समझ लो। बायबैक कंपनी करता क्यों? मीनिंग वगैरह बहुत आसान है। कंपनी परचेसिंग इट्स ओन शेयर्स, बट वाई इज नॉट इजी टास्क? वाई इज नॉट इजी? लेट अस टेक अ कंपनी. I go to स्क्रीनर, और स्क्रीनर पे मैं साउथ इंडिया का एक सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क है सन टीवी। सन टीवी देखो, सन टीवी पहले मार्केट कैप, ये एक टोपी होती है जो मार्केट को पहनाई जाती है। मार्केट कैप है कि नहीं? तुम्हारा कौन सा है, मार्केट कैप है या नॉर्मल कैप है? तो व्हाट इज मार्केट कैप? व्हाट इज मार्केट कैप? कैप इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कैपिटलाइजेशन। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,670 करोड़ है। हाँ, क्या बोला? 16,000? तेरे बाल देख के अट्रैक्ट हो गया होगा। 16,670 करोड़। और भंडारी वैसा मतलब है ही, तो पहले तो सुराना के पीछे पड़ा था, अब तेरे पीछे पड़ा होगा। बच के रहना बेटा। मार्केट कैप, ये कौन सी मार्केट कैप है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट कैप। बहुत तालियां बजा रहे थे ना तुम लोग, बोलो भाई साहब, बहुत ताली बजा रहे थे आप। मार्केट कैप ये कौन सी है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट कैप। हाँ, सो दूसरी कौन सी है? और एक मार्केट कैप रहती है, फेस वैल्यू। थर्ड क्लास यूजलेस बुलशिट। फेस वैल्यू के हिसाब से मार्केट कैप कैलकुलेट करता है। There is a total market capitalization and there is a free float market capitalization. एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने कभी? सो मैं आपको बायबैक के लॉजिक्स डेवलप कर रहा हूं। ये जो भी मैं आधे घंटा 1 घंटा बकबक करेगा, उसका एक भी मार्क का रिलेवेंस नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीजों समझोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। इसको एफएम से मैं लिंक करूंगा, लॉ से लिंक करूंगा, इनकम टैक्स से लिंक करूंगा, और फिर पैसा कमाने का टेक्निक भी बोलूंगा। आज वो तुम्हारे लिए रिलेवेंट नहीं है, 10 साल के बाद तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम कमा सकते हो। मतलब एक बायबैक के अनाउंसमेंट पे तुम पूरा मतलब गुड अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न। टोटल मार्केट कैप पहले सुन लो। ये कैसा था? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स, इनटू प्राइस पर शेयर। ये मैंने आपको ग्रुप 1 अकाउंट्स में राइट इश्यू बोनस इश्यू के चैप्टर में भी सिखाया था। टोटल मार्केट कैप, और दूसरा मैंने क्या बोला? फ्री फ्लोट मार्केट कैप। कितने लोगों को मालूम है ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप? हाथ ऊपर करो। क्या है? सिर्फ 8-10 लोगों ने हाथ ऊपर किया, बाकी लोग क्या गोटा खेल रहे क्या? सुराना बेशरम कहेगा। फ्री फ्लोट
out of the total number of shares of the company, all shares never come for trading in a stock market. Out of total shares, certain shares which are held by promoters or certain shares which are locked for the purpose of trading, for example ESOP, एम्प्लॉइज को जब आप शेयर्स देते हो ESOP के अंदर, वो ESOP के शेयर्स वो सर्टन टाइम पीरियड तक नहीं बेच सकते. देयर इज अ लॉक इन दैट इज क्रिएटेड. लॉक इन का कंसेप्ट लॉ में सिखाया था. लॉक इन रहते हैं शेयर्स, आप बेच नहीं सकते हो. तो ये जो तुम्हारे टोटल शेयर्स है ना कंपनी के, इसमें से कुछ शेयर्स जो प्रमोटर के पास है, कुछ शेयर्स जो लॉक्ड इन है, कुछ शेयर्स जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, बट दे आर हेल्ड एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ ट्रेडिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. स्ट्रैटेजिक मतलब वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, वो बोलता है कि हमें इस कंपनी के साथ जुड़े रहना है नेक्स्ट 10-20 ईयर्स. स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट रहता है वो. लाइक फॉर एग्जांपल स्काई कॉर्पोरेशन, व्हेन दे इन्वेस्टेड इन टाटा स्काई, that was not a financial investment, that is a strategic investment. You invest some money and you come also onto the board of directors. You also take a part in your business. You may not be promoter, but you might be interested in taking certain part in the business activities. For example, investment that Zomato has done in the Blinkit. Blinkit, क्या है Blinkit? Grofers. ग्रोफर्स मालूम है क्या? ग्रोफर्स का नाम क्या अभी? ब्लिंकिट. अच्छा सर, ग्रोफर्स ही मालूम नहीं हमको. ऑनलाइन वेजिटेबल डिलीवरी, मतलब वो इंटरनेट से वेजिटेबल नहीं आता है, वेजिटेबल ग्रोसरी आइटम्स वेरियस. Zomato has invested in the Blinkit. Now, do you think Zomato is trading like you people? Like जाले अपना यस बैंक के 2 शेयर खरीदता है, उसके जैसा Zomato ने Blinkit में इन्वेस्ट किया? किधर गया फ्लो में? कितने शेयर है यस बैंक के तेरे पास अभी? 2 शेयर है. 22 रुपए के शेयर से इसके पास. 22 या क्या 14 रुपए होगा, 28 हो गया होगा. उधर ही है, 20 से 30 रुपए में रहता. सो Zomato ने जो Blinkit में इन्वेस्टमेंट किया है वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है. जो Blinkit के टोटल शेयर्स है उसमें से शेयर्स हेल्ड बाय Zomato, शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स ऑफ Blinkit, शेयर्स हेल्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ Blinkit विच आर लॉक्ड इन, ये सब शेयर्स मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग के लिए नहीं आएंगे. अब Blinkit के केस में ट्रेडिंग को कभी आएगा नहीं, क्योंकि Blinkit इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बट Sun TV इज लिस्टेड. Sun TV, आई होप एवरीवन नो Sun TV. तो अगर आप यहां पर देखोगे Sun TV के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है 39.4 करोड़ है. एक शेयर का प्राइस 423 रुपया है. टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 39.4 into 423, 16,670 रफली. एग्जैक्ट मैच कभी होता नहीं हो. 16,670 करोड़. क्या है ये 16,670? मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ होम Sun TV. अब ये 39.4 करोड़ शेयर्स जो है, इसमें से प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 75% है. वो कहां पे दिखता है आपको? शेयर होल्डिंग पैटर्न में. नीचे आपको कहीं ना कहीं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा. कैन यू सी शेयर होल्डिंग पैटर्न? प्रमोटर्स ओन 75. ये तो शेयर ट्रेडिंग के लिए कभी आएंगे नहीं. तो ये FII जो है ये ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए रहता है. FII, DII, पब्लिक, उनके पास 25% है. सो रिमेनिंग एंटायर 25% इज फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोट मतलब वो ट्रेडिंग के लिए आ सकते हैं. स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी इंडेक्स नंबर क्रिएट होता है, वो इंडेक्स नंबर के अंदर पर्टिकुलर कंपनी का वेटेज कितना होगा, इट इज बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट कंपनी. TCS is bigger than Infosys, is way bigger than Infosys, almost double. So if I look at TCS market capitalization, TCS का टोटल मार्केट वैल्यू 12,55,000 है. कितना है? 12,55,000 करोड़. इनफी आधा से थोड़ा ज्यादा है एक्चुअली, थोड़ा 6,43,000, मोस्ट ऑलमोस्ट हाफ और लिटिल मोर. Infosys is half of TCS in terms of total value. Do not decide on the basis of share price. शेयर प्राइस देख के कौन सा कंपनी सबसे बड़ा है ये डिसाइड करने वाले इलिटरेट गधे होते हैं.
शेयर प्राइस मत कंपेयर करो, मार्केट कैप कंपेयर करो. विच वन इज बिगर बाय मार्केट कैप? टीसीएस. इन्फोसिस छोटा है ना. नाउ आई विल टेक यू टू एनएससी इंडाइसेस करके एक वेबसाइट है, वहां पर लेके आता हूं. निफ्टी इंडाइसेस करके वेबसाइट रहेगा, इधर नीचे निफ्टी इंडाइसेस .com. तो यहां पर मैं निफ्टी, ये जो इंडेक्स नंबर है उसमें वेटेज कौन से कंपनी का कितना है वो देखते हैं. इधर नीचे ब्रॉड बेस इंडाइसेस रहते हैं, उसमें निफ्टी 50 है. खुलने दो. उसका फैक्ट शीट हम डाउनलोड करेंगे या इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट डाउनलोड करेंगे. उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट का आई होप वेटेज लिखा आएगा, सिर्फ नाम है, वेटेज नहीं है. फैक्ट शीट में वेटेज रहेगा. देखो इन्फोसिस का वेटेज कितना है, 7.58. टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टॉप में टीसीएस का भी है 4.8. इन्फी कितना था? 7.58%. मतलब जो निफ्टी का वैल्यू है उसका 7.58% वैल्यू इज बिकॉज ऑफ इन्फी. हु इज बिगर, इन्फी और टीसीएस? टीसीएस ना. then why the hell Infi is having more weightage? Infi is half, but the weight of Infi is almost double. Exact double nahi hai, 1.5 times you can say. 4.8 into 1.5, almost 7.58. Why is that? Because Infosys has much higher free float market capitalization. TCS is owned by promoters, which is Tata Sons. अगर आप यहां पे जाके देखोगे इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्यों सिखा रहा हूं यार इनको ये. शेयर होल्डिंग पैटर्न में इन्फोसिस कितना है? 13.11 प्रमोटर के पास है. टीसीएस देखो ऑलमोस्ट 66-67% रहेगा. टीसीएस शेयर होल्डिंग पैटर्न 72% इज विथ हुम? प्रमोटर. समझा गया? तो मैंने आपको बायबैक का लॉजिक एक्सप्लेन करना है. आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ सन टीवी विच इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बायबैक, बट वो करेंगे नहीं. फ्री फ्लोट मार्केट कैप के लिए हम क्या करेंगे? टोटल शेयर्स में से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रॉम दिस आई विल डिडक्ट व्हाट? लेट अस से जस्ट शेयर्स हेल्ड बाय, बोलो, प्रमोटर्स. वो मैं माइनस कर लेता हूं इनटू प्राइस पर शेयर. समझा गया तुमको ये? तो विच वन विल बी लोअर ऑल द टाइम? फ्री फ्लोट मार्केट कैप विल बी लेसर, है ना? तो जस्ट अ सेकेंड. फ्री फ्लोट मार्केट कैप हमेशा लेस रहेगा, कम रहेगा. ठीक है? अब मैंने ये एक्सप्लेन क्यों किया. जब शेयर्स आप बायबैक करने वाले हो तो कहां से बायबैक करेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर्स में से बायबैक करेंगे ना. लेट मी कम बैक टू होम. सन टीवी गया, एक हो गया इसका. इसको क्या करना था? एप्पल पेंसिल डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर रहे थे ना. ये प्रॉब्लम ग्रुप 1 में, हाँ आ गया, हो गया, डर गया वो. तो सन टीवी का मार्केट कैप कितना है? 16,670 करोड़, है ना? Sun TV is traded at 10.2 times of earnings, PE. PE is your price is how many times of earnings. E is earnings. तो सन टीवी का जो एनुअल प्रॉफिट है पिछले 12 महीने का, अभी राइट नाउ वी आर इन जून 2022, तो 12 महीने पिछले जो खत्म हो गए मार्च 2022 में खत्म हो गए. तो इफ आई लुक एट द पैट इज 1642. टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 16,670 divided by 1642, 10.15. What is 10.15?
पीई रेशो 10.15 टाइम्स उसने राउंड ऑफ करके 2 लिखा है. नाउ दिस इज वेयर आई वांट कम इन. आई एम एक्सप्लेनिंग द लॉजिक्स ऑफ बाय बैक. तुमको नहीं चाहिए, दरवाजा उधर है. गेट लॉस्ट. सो सन टीवी इज अर्निंग रिटर्न ऑफ 29.1%. अब बोलेंगे क्या है? आरओसी. व्हाट इज आरओसी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. उसने कैपिटल रेज किया है. कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल को जॉब नहीं लगाया है. तो आप बोलेंगे कैपिटल को जॉब लग गया. कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड. सन टीवी ने जो भी कैपिटल रेज किया है वो अपने धंधे में लगाया. क्या धंधा है इनका? मूवीज प्रोड्यूस करना, टीवी चैनल्स चलाना, शोज प्रोड्यूस करना, या उनका ऐप है कुछ तो नेटफ्लिक्स के जैसा उनका ऐप है सन नेक्स्ट ऐप है, प्लस उनका डीटीएच सर्विस भी है, टाटा स्काई के सन डायरेक्ट, साउथ इंडियन है. तो सब कुछ मालूम है. साउथ इंडियन मूवीज बनाते रहता है. साउथ इंडियन मूवीज, शोज इतने अलग, सब वर्चुअली एवरी लैंग्वेज इन सदर्न इंडिया सन टीवी हैज अ प्रेजेंस. इट्स लाइक अ जी टीवी ऑफ साउथ. जी इज ऑल्सो देयर इन द साउथ, बट जी उतना प्रोमिनेंट नहीं है. इस साउथ के अंदर इसका बहुत बड़ा स्कोप है, और इसके पास कंटेंट जो है वो मतलब पूछो मत, बार बार के कंटेंट है. तो ये उसने क्या किया? शोज प्रोड्यूस करके रखता है और एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाता है. तो वो पैसा कितना कमा रहा है? 29.1%. ये कैसा है? 20 जो कैपिटल तुमने लगाया है बिजनेस के अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट से देखने को मिलेगा, उसके ऊपर 29% तुम कमा रहे हो. बट इक्विटी के ऊपर 21.6 कमा रहे हो. अब बोलेंगे कैसे सर? ये जो आरओसी रहता है ना, ये टोटल कैपिटल पे रहता है, इक्विटी प्लस डेट पुट टुगेदर. एंड ये आरओसी जो रहता है वो जनरली बिफोर टैक्स रहता है. क्या बोलते हैं इसको? बिफोर टैक्स. मतलब 29.1% यू आर अर्निंग बिफोर पेइंग इनकम टैक्स. आफ्टर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड आफ्टर रिड्यूसिंग डेट, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाया वो कितना है? 21.6%. ये फॉर्मूलाज आपको ग्रुप 2 एफएम में आने वाले हैं, आएंगे. बट तभी भी आरओसी कैसे आता है? क्योंकि मुझे ये लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए लगने वाला है, मैं एक्सप्लेन करता हूं. आरओसी इज रिटर्न ऑन व्हाट? टोटल कैपिटल ना. इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रॉफिट आप कमाते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं ईबीआईटी. और ई इज अर्निंग, बी इज बिफोर, आई इज इंटरेस्ट एंड टी इज टैक्स. या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये ग्रुप 1 अकाउंट्स में भी आया था, शेड्यूल 3 अगर आपको याद होगा, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये. या कॉस्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, एंगल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी करके चीज मैंने आपको कॉस्टिंग में एक्सप्लेन की थी. इबिडा एक्सप्लेन किया था. अकाउंट्स में इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में भी इबिडा मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इंश्योरेंस क्लेम में हमने एक अर्निंग रेशो करके कंसेप्ट किया था. तो व्हाट इज न्यूमरेटर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल. तो कंपनी 29% कमा रहा है, याद रखना ये सब परसेंटेजेस. आरओई में क्या होता है? हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट करस्पॉन्ड टू ईच अदर, अदरवाइज एलॉन मस्क विल हैपन. और अदरवाइज सलमान खान कुड हैपन. शादी नहीं हो सकती कभी. मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सलमान खान फैंस और एलॉन मस्क फैंस, हस्बैंड वाइफ मस्ट कर. बोले ये क्या बकवास कर रहे हैं सर? न्यूमरेटर मस्ट करस्पॉन्ड विद डिनोमिनेटर. यहां पर डिनोमिनेटर में टोटल कैपिटल था, इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस, इसलिए न्यूमरेटर में मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट माइनस योर फिक्स कॉस्ट. कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में भी आया था. मैं आपको बार बार ये ऐसे सताने वाला हूं, बहुत बार सताऊंगा. जो बच्चे भी पढ़े नहीं ना, उनको ऐसा मतलब मैं कांड कर जब बजनी चाहिए सालों. 10 दिन छुट्टी दिया था तभी पढ़े नहीं है कुछ लोग. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज फॉर होम? फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स, फॉर डेट इन्वेस्टर्स, फॉर होम? ऑल इन्वेस्टर्स पुट. सबके लिए तुमने मिला के कितना कमाया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट. इंटरेस्ट वगैरह माइनस नहीं किया मैंने, क्योंकि ईबीआईटी का मतलब क्या है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल कैपिटल. अब मैं आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी वाला लेने वाला हूं. डिनोमिनेटर में इक्विटी आएगा
डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इक्विटी आएगा. इक्विटी अमाउंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट एज पर मार्केट वैल्यू. इक्विटी एज पर बुक्स मतलब क्या होता है? याद है क्या? शेड्यूल 3, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो ये है बेसिकली शेयर कैपिटल. कौन सा शेयर कैपिटल? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि एक हाइब्रिड हिमेश अपना बॉलीवुड का प्रोड्यूसर रहता है उधर. रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी, समझा क्या रे? न्यूमरेटर में क्या लेने वाला हूं? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट हमारे सिंपल लैंग्वेज में पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. जो तुमने प्रॉफिट कमाया आफ्टर टैक्स, डिड आई से बिफोर टैक्स? ये क्या था? ये प्री टैक्स था. ये क्या है? पोस्ट टैक्स. सन टीवी कितना कमा रहा है? 29% का आरओसी है और 21% का आरओई है. ऑब्वियस है. क्यों? टैक्स जाने के बाद तो क्रेडिट इनकम होगा ना यार. समझा गया? आ जाता हूं मैं वापस इधर. मेरे को जो जो चीजें चाहिए वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपीएम इज नॉट योर वो गांजा चरस वाला ओपीएम नहीं है. वो ओपीआईयूएम रहता है. ये ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है. 100 रुपए का माल बेचा तो 63 रुपीज का मार्जिन. हाँ बोले इतना ज्यादा? हाँ, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. सन टीवी क्या मैन्युफैक्चर करता है? साउथ इंडिया का कोई एक्टर या एक्ट्रेस मैन्युफैक्चर करके तुमको देता है क्या? नहीं ना, वो सर्विस देता है. तो उनके लिए कॉस्ट क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट प्लस ब्रॉडकास्टिंग का जो कॉस्ट लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, वो इंटरनेट का कॉस्ट आ गया उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्लस जो पेमेंट करते हैं फॉर टू द एक्टर एक्ट्रेसेस वेरियस क्रू मेंबर्स, वो आ गया. खत्म. बाकी का पूरा मार्जिन ही उनका. तो मार्जिन कितना है? 63. रेवेन्यू आता कहां से? एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आएगा, प्लस चैनल का सब्सक्रिप्शन फी रहता है. जब तुम टाटा स्काई पे या कोई चैनल खरीदते हो तो 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया पर मंथ तुमको देना पड़ता है. आई होप यू नो. जब चैनल सिलेक्ट करते हो तो आता है ना. तो 63% उसका मार्जिन है. एंटरप्राइज वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी पुट टुगेदर इज अराउंड 15,627. अब बोलेंगे सर ये कम क्यों है? बिकॉज इसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस किया जाता है टोटल मार्केट कैप से. वो छोड़ दो, एंटरप्राइज वैल्यू अभी नहीं समझेगा, एफएम के अंदर समझाऊंगा. ईबीआईटी कितना कमा रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2229 है, ये याद रखना. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2229. यहां से मैं आपको बायबैक का लॉजिक बिल्ड करके दिखाने वाला हूं. एंड यू विल गो मैड. ये मुझे मालूम है, सन टीवी के प्रमोटर को भी मालूम है, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहता है बायबैक. इसने बायबैक किया ना, 400 का शेयर कम से कम एक 600-700 की तरफ भागेगा मिनिमम. द स्टॉक इज वर्थ ट्रूली 700-750 रुपीज वर्थ. फिर आप बोलेंगे बायबैक क्यों नहीं कर रहे? वो अभी तक मुझे समझा नहीं है. वो अगर मुझे जिस दिन समझा, मुझे हिंट आया ये बायबैक करने वाला है, बहुत बड़े क्वांटिटी में मैं इसको खरीद के रखेगा. क्यों? कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है. कंपनी का जो कस्टमर बेस है इतना लॉयल है. तुम साउथ इंडिया में जाके देखो, उधर मतलब विल गो मैड विद द लॉयल्टी. अमेजिंग लॉयल्टी. दे नो अदर कंपनी हैज एबल टू बीट इट. नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एनीथिंग, कुछ स्कोप ही नहीं है. टाटा स्काई वगैरह कुछ वहां पे उखाड़ भी नहीं सकता उनको, बिल्कुल नहीं कर सकता. तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, सब कुछ है. प्रमोटर्स पॉलिटिकली लिंक्ड है. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंपनी. बट हम कंसेप्ट सीख रहे हैं. हम कोई आई एम नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट. इफ यू इन्वेस्ट एंड लूज मनी, यू आर रिस्पॉन्सिबल. असेट टर्नओवर अभी आएगा, एफएम के अंदर आएगा. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1642. कैसे? ये ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया होगा, कुछ तो रहेगा लोन वगैरह, तो फिर उसमें से टैक्स गया रहेगा और फिर आपका पैट आया रहेगा. वो नीचे पी&एल में दिखेगा अपने को. अब मेरे को और कुछ चीज नहीं चाहिए. रिटर्न ऑन इक्विटी हमको मिल गया, ठीक है. अब नीचे आ जाओ. पी&एल देखो इसका. लेटेस्ट पी&एल अगर आप देखोगे मार्च 2022 का 3,585 करोड़ का सेल्स है. सेल्स मतलब एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू प्राइमरीली. उसमें से मेजॉरिटी 99% विल बी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू. सब्सक्रिप्शन से बहुत कम आता है. एक्सपेंसेस 1,300 करोड़ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,270 करोड़. मार्जिन हो गया. अदर इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा कमाया होगा वो रहेगा. तो अदर इनकम 256 करोड़. एवरीथिंग विल बी इंटरेस्ट इनकम. तो ये इंटरेस्ट नॉर्मल है और ये अदर इनकम नॉर्मल क्या है भगवान जाने. इन्वेस्टमेंट इनकम ही रहेगा वो.
दिस विल बी इन्वेस्टमेंट इनकम ओनली। ये स्क्रीनर वगैरह पे डेटा उतना परफेक्टली मैच नहीं किया जाता है, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करके मिलेगा कंपनी के वेबसाइट से, बट राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड। डेप्रिसिएशन आया उसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, समझा करे? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या था? व्हाट वाज दिस? दिस वाज आल्सो नोन एज EBITDA। अरे कम इन और रिस्पॉन्स, व्हाट इज EBITDA? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड व्हाट? अमोर्टाइजेशन, है ना? EBITDA। आर यू क्लियर विद EBITDA? तो वो 2279 EBITDA था। इसके बैलेंस शीट में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, बहुत चिल्लर अमाउंट का इंटरेस्ट है। कितना है रे? 33 करोड़ का इंटरेस्ट है। दिस इज इंटरेस्ट एज एक्सपेंडिचर। कैसे? टेक ऑन योर कैलकुलेटर। 2279 प्लस 256 अदर इनकम है, वो इन्वेस्टमेंट इनकम कमाया उसने, माइनस 33 माइनस 306 शुड बी 2195 2196। इनकम टैक्स 25% के हिसाब से उनका गया है। आप बोलेंगे सर कैसे 25%? कुछ डिडक्शन होगा, एग्जामिशन होगा कुछ, आई डोंट नो। इनकम टैक्स रेट हर साल वेरी होता है। याद होगा तो मैंने ग्रुप 1 अकाउंट्स में इफेक्टिव टैक्स रेट दिखाया था कंसेप्ट, ग्रुप 1 अकाउंट शेड्यूल 3। तो 25% इफेक्टिवली टैक्स पे किया उन्होंने। नेट प्रॉफिट इज 1642 करोड़। टैक्स रेट उनका हर साल का चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस जो मिलते रहेंगे वो हर ईयर ऑन ईयर चेंज हो सकते हैं ना। अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट है 41 रुपीज का, उसमें से 33% उन्होंने डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया है ना? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? कंपनी इज हाईली प्रॉफिटेबल। अब आप पिछले 4-5 साल भी देखोगे, एवरेज एक्सपेंसेस कितने रहे कंपनी के? 1100 करोड़, 1200, 1100, 1300। सो रफली अराउंड 1200 करोड़ इज एक्सपेंसेस पर ईयर। डू यू एग्री? यू वांना गो मैड? उधर से आवाज नहीं आ रही है? मर गए क्या? लगा दो यहां पर डेड बॉडीज का रिस्पॉन्स दे दो, बोलो तो। बैलेंस शीट देखो, 1200 करोड़ का खर्चा है ना तुम्हारे पास सेविंग अकाउंट में। जब तुम बैलेंस रखते हो, इज इट इक्वल टू वॉट एवर एक्सपेंसेस यू आर गोइंग टू इंकर फॉर द नेक्स्ट होल ईयर? उतना पैसा तुम बैलेंस में रखता है क्या? तुम्हारे जेब में अभी तुम चलो, तुम्हारा हर रोज इधर चाय पे या ब्रेकफास्ट पे 25 रुपया, 50 रुपया खर्च होता है, 100 रुपया खर्च होता है। अगले एक साल में 3650 रुपया, 36,500 खर्च होगा 365 डेज का। तुम्हारे जेब में भी 36,500 का कैश है? उतना पैसा लेके घूमता है लिक्विड फॉर्म में? नहीं ना, नहीं ना। देखो, सन टीवी इन्वेस्टमेंट्स फकिंग 3,559 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस के अंदर नहीं है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ये इन्वेस्टमेंट का अगर आपको कच्चा चिट्टा चाहिए तो सन टीवी के बैलेंस शीट, सन टीवी इन्वेस्टर रिलेशंस। तो आप यहां पे जाके पूरा ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मिलेगा आपको। उसमें इन्वेस्टमेंट्स का डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स। अरे यार, इसने स्कैन करके डाला है, जूम होने में दिक्कत होता है। इसने नोट्स टू अकाउंट्स नहीं डाला है, इज नॉट पुट अप द नोट्स टू अकाउंट्स। एनुअल रिपोर्ट में आएगा नोट्स टू अकाउंट्स। पिछले साल का देखते हैं, 2021 का सन टीवी नेटवर्क। देखो, सन टीवी नेटवर्क का 31 मार्च 2021 का एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है। मैं उसमें तुमको नोट्स टू अकाउंट्स में लेके जाता हूं। उस बैलेंस शीट में भी वही फिगर है लगभग। लेट मी टेक यू टू द बैलेंस शीट। देखो, ये बैलेंस शीट है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे कमीना, बैलेंस शीट देखो। करंट असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हाउ मच? 2,393 करोड़। लॉन्ग टर्म के लिए 650 करोड़ अलग से ऊपर। नॉन करंट है, ये करंट है।
इन्वेस्टमेंट्स कहां पर किए देखना है तुमको, कहां पे देखेगा, नोट नंबर 9 एंड यू विल गो, डू यू वांट टू गो मैड? नोट नंबर 9, 2300 2393 2400 करोड़, उसमें से 2300 करोड़ कहां पर है? इन्वेस्टमेंट इन अनकोटेड म्यूचुअल फंड्स। कहां पर पैसा लगा है? म्यूचुअल फंड्स। रेफर नोट नंबर 9.1, ये है आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्राज फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फिक्स टर्म प्लान, फिक्स टर्म प्लान, फिक्स टर्म प्लान, फिक्स टर्म प्लान, फिक्स टर्म, एफडी होता है। एफडी के फॉर्म के जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स के लिए थोड़ा इफिशिएंट रहता है। ये इतना पूरा इन्वेस्टमेंट इसने किया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, आईसीआईसीआई, सब फिक्स टर्म है। आर्बिट्राज सब डेट वाला कैटेगरी है। कितना? 2300 करोड़। लॉन्ग टर्म का भी वैसा ही है, ऊपर जाके नोट्स अकाउंट में मिलेगा। नाउ लुक एट दिस, in your balance sheet of March 2022 you have 3560 crores appearing as an investment when your annual expenses is 1100 crores. My annual expense is 1100 crore। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर आप देखोगे, फिक्स असेट्स परचेस्ड 1130 करोड़ है, बट उतना तो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना। जो तुम्हारा कैपेक्स करना है उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारा प्रॉफिट है। तुम अगर एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर देखोगे 600, 200, 1100, 500, 500 करोड़, मेरा प्रॉफिट उससे ज्यादा है। तो मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, नई मूवी उनको प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा, चलो बाहुबली टाइप का मूवी बनाया, 100, 200, 300, 400 करोड़ लग सकता है। साउथ में मूवीज मैग्नानिमस होते हैं, दे आर लार्जर देन लाइफ। रजनीकांत को लेके भी तुमने मूवी बनाया लिया, या कमल हसन को लिया, या और जो भी कोई होगा तुम्हारा, या वो पुष्पा वाला बनाया, अल्लू अर्जुन, ओके, अल्लू अर्जुन को लिया, किसको भी लिया। कितना अल्लू अर्जुन कितना लेता होगा एक मूवी का? 50 करोड़, 100 करोड़? ये साउथ इंडिया नहीं पता कितना लेता होगा, 50, 100, 200, उसके ऊपर तो नहीं लेगा ना। इसका प्रॉफिट 2200 करोड़ है बेटा। इसका प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी 1500-1600 करोड़। मतलब जो कैपेक्स है वो प्रॉफिट से ऑलरेडी मीट हो रहा है, और जो खर्चा है वो मीट करने के लिए जितना अमाउंट चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मेरे इन्वेस्टमेंट्स में पड़ा है। अब तुमको मैजिक देखने का है? मैजिक बिगिंस नाउ। कितने लोगों को समझा मैजिक में क्या करने वाला हूं? ये सब पूरा बैकग्राउंड देके हाउ मेनी अंडरस्टूड? लेट मी सी हाउ मेनी आर स्मार्ट हियर। हाँ, you can smell it। देखो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था ऊपर? यार रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जर्नल एंट्रीज में जाओ क्या यार, क्या लोग है तुम। 21 पॉइंट कैसे निकला होगा वो देखते हैं। देखो नहीं कैलकुलेटर, तुम्हारा पैट कितना है पूरे साल का? पैट 1642 दिख गया, 1642 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इक्विटी। बैलेंस शीट में जाके अमाउंट ऑफ इक्विटी इज रफली 8150 8150 डिवाइड बाय 8150 इंटू 100, 20.14। ठीक है, बाकी पूरा बैलेंस शीट लेके एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। रफली हम वहां पर गए। क्या किया मैंने, जिन गधों को समझा नहीं, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उनका टोटल होता है रफली 8150, 8150 करोड़। 8150 करोड़ का इक्विटी है, उसके ऊपर तुमने प्रॉफिट कितना कमाया? 1642 करोड़ का प्रॉफिट कमाया ना। रिस्पॉन्स
रिटर्न आया 21.6%। आगे जाके एफएम में तुम सीखोगे वेल्थ 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 wealth is denoted by price of a share. Price of a share is dependent on two things: return that a company generates and the risk that is attached to the business of the company. Risk and return. अब रिस्क तो सेम रहने वाला है, मैं रिटर्न बढ़ाऊंगा। ये जो 21.6 है ना, उसको मैं बायबैक करके बढ़ाऊंगा। कुछ बिजनेस में, धंधे में मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डू समथिंग विद द बैलेंस शीट विच इज गोना इंक्रीज माय रिटर्न। यू वांट टू सी हाउ? लुक एट इट। अभी कंपनी का राइट नाउ, लुक एट इट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इनकम? इन्वेस्टमेंट्स जो कमा रहे हैं तुम्हारे, इन्वेस्टमेंट इनकम कितना है? इन्वेस्टमेंट इनकम कितना था उधर? P&L में से इन्वेस्टमेंट इनकम दिखता है ना, ये अदर इनकम जो है ना वो पूरा इन्वेस्टमेंट इनकम है। 256 करोड़ दिख रहा है क्या तुमको? 256 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनकम है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? 2300 वो सिर्फ शॉर्ट टर्म था बेटा, देयर आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आल्सो ना बैलेंस शीट में। 3559 3560 लिखते हैं, 3560। अब उसमें से कुछ मैं 560 माइनस करता हूं, क्यों? सब्सिडरी में इन्वेस्टेड रहेगा शायद, बट ये कंसोलिडेटेड है तो सब्सिडरी का एलिमिनेशन हो गया होगा। हाँ, ये कंसोलिडेटेड है, बट अज्यूम करो मैं 560 लॉन्ग टर्म है, मैं कितना ले रहा हूं? 3000 ही ले रहा हूं मेरे कैलकुलेशन के लिए। शॉर्ट टर्म लिक्विड फॉर्म में वो, बाकी का क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इलिक्विड रहता है, लिक्विड नहीं रहता। लिक्विड मतलब मनी फॉर्म में नहीं रहता है। तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है? रिटर्न ऑन दीज आर योर नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको याद होगा, कंपनी फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर था, उसमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का कंसेप्ट था, उसमें नॉन कोर इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया था। वो तुमको माइनस करने पड़ते थे इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन विथ रेफरेंस टू शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो एक शेड्यूल था, उधर ऐसे स्लैब्स दिए थे, ग्रुप 1 अकाउंट सब्जेक्ट में था। कितना रिटर्न है रे? तुम साला 256 करोड़ कमा रहा है बाय इन्वेस्टिंग 3000 करोड़ इनटू 100, 8.53% कमा रहा है। हाँ ना, एक्चुअल में वो कम होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म का अमाउंट उससे ज्यादा था मेरे हिसाब से कुछ, बट चलो छोड़ दो, इट्स लेट इट बी। हम रफ कैलकुलेशन, क्विक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, पूरा इसको बोलते हैं बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशंस, क्विक। 8.53% you are earning, right? What is your operating profit? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का P&L क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था लेटेस्ट 2279, उसमें हमने क्या ऐड किया? अदर इनकम ऐड किया। अदर इनकम कितना ऐड किया हमने? 256 का ऐड किया, इंटरेस्ट माइनस किया, डेप्रीसिएशन माइनस किया, वो मुझे अमाउंट चाहिए नहीं, और ये करके आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई गेट अ पीबीटी। व्हाट इज माय पीबीटी? 2195 इज माय पीबीटी। इसमें से मैंने टैक्स माइनस किया और टैक्स जाके पैट आया। आपको एक बुक में भी ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, क्यों? सन टीवी के मैनेजमेंट को मालूम नहीं तो बुक को कैसे मालूम होगा? नेट प्रॉफिट 1642, हाँ ना। और कंपनी का इक्विटी अमाउंट कितना है? इक्विटी अमाउंट है, इक्विटी अमाउंट कैसे निकालोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 197 प्लस तुम्हारा रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में है 7958, टोटल 8155। तो आरओई आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज नथिंग बट पैट अपॉन इक्विटी अमाउंट, A divided by B, 20.13%. Am I right? What is market cap? Market cap is
16,670 crores, 16,670 करोड़ की तुम्हारी मार्केट कैप है, विच इज 10 टाइम्स ऑफ दिस पैट। यहां से आपको पी आता है, पीई 10.3 था ना रे, कुछ तो 2 एग्जैक्ट 10.2 टाइम्स पी है। आर यू गोना गो मैड? देखो अब साला मेरे पास जो एक्सेस इन्वेस्टमेंट पड़ा है वो कितना कमा रहा है? सिर्फ 8.53। इट इज रियली नॉट अर्निंग द रिटर्न एज गुड एज व्हाट माय बिजनेस इज अर्निंग। माय बिजनेस हैज ब्लडी जनरेटेड 3100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 33,000 करोड़, 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जनरेट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तुम्हारे बिजनेस ने करके तुमने इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया है, इन्वेस्ट किया है ना तुमने पैसा। इन्वेस्ट कहां से किया होगा? प्रॉफिट में से इन्वेस्ट किया होगा ना। तुमने जो प्रॉफिट कमाया टैक्स पे करने के बाद, वो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया। तुम्हारे पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए वो हर साल प्रॉफिट में से आ रहा है, क्योंकि मैंने कैपेक्स, अगर उसका 10 साल का कैपेक्स देखूं मैं, तुम देखो ना 10 साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे दिखता है तुमको? कैश फ्लो में दिखता है। इन्वेस्ट फिक्स एसेट परचेस 481, 714, 593, देखो ना सब साल का एवरेज भी लेगा तो भी बहुत कम रहेगा। मैक्सिमम करंट ईयर का ही है, कितना है? 1130। फिक्स एसेट्स परचेस, ये इन्वेस्टमेंट तो अलग है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो कोर एक्टिविटी नहीं है। कोर एक्टिविटी क्या है? नया चैनल लॉन्च करना। कोर एक्टिविटी क्या है? साउथ इंडियन मूवी प्रोड्यूस करना। कोर एक्टिविटी क्या है? नया टीवी शो सीरीज तैयार करना, या वेब सीरीज होता होगा उनका, कौन सा ऐप बोला तू? द नेक्स्ट। उधर वेब सीरीज नहीं आता है उधर? साउथ इंडिया में वेब सीरीज नहीं चलता? नहीं चलता, डाउटफुल है। तो इधर साउथ इंडियन हियर वेब सीरीज आता होगा, या और कुछ तो उसका नॉर्मल टीवी सीरीज चलाता होगा, टीवी सीरीज को वेब सीरीज बना के बेचता होगा। और वेब सीरीज प्रोड्यूस करना कॉस्टली अफेयर रहता है, इट्स नॉट अ इजी अफेयर। So like Netflix spends a heavy amount of money on something like Money Heist or something on that. कौन सा वो था, कौन तो गेम? स्क्विड गेम, स्क्विड गेम, हाँ स्क्विड गेम वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो कुछ भी होता है ना, तो उसको जो पैसा चाहिए वो कितना चाहिए? 1100 करोड़ चाहिए भाई। वो 1100 करोड़ मेरे प्रॉफिट में से आ रहा है। दिमाग है क्या? क्या दिमाग लगाओगे? ये जो 3,000 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट मेरे कोर बिजनेस एक्टिविटी के अंदर नहीं है। दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन माय कोर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट इज इन नॉट इन माय कोर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एट ऑल। व्हाई द हेल डू आई इन्वेस्ट? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सन टीवी हुआ है क्या पैदा? सन टीवी किसके लिए पैदा हुआ? साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट क्रिएट करना और उसको डिलीवर करना। तो मैं क्या करता हूं, लेट मी फाइंड इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट कैप। इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। वो मैंने बायबैक कर लिया तो भी मेरे बिजनेस का कोई पैटर्न अफेक्ट होगा? नहीं। क्यों? अबे साला 2 साल का लॉकडाउन आया तभी भी तुम्हारा बिजनेस अफेक्ट नहीं रहा। जहां पर पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी तभी भी तुम्हारा धंधा अफेक्ट नहीं हुआ, तभी भी उसने प्रॉफिट कमाया। देखो ना, ईयर 2 ऑन द कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। क्यों? सब लोग टीवी भी देख रहे थे और देखो प्रॉफिट बढ़ गया उसका। मार्च 2020 से 2021 में प्रॉफिट बढ़ गया, 2022 में प्रॉफिट और बढ़ गया। मतलब इसको कोविड जैसा जो पैंडेमिक था, वंस इन अ सेंचुरी काइंड ऑफ पैंडेमिक था, वो भी अफेक्ट नहीं कर पाया। इसके बैलेंस शीट में ला कोई बहुत बड़ा लोन अमाउंट है? कोई लोन अमाउंट नहीं है। 95 करोड़ वर्किंग कैपिटल का लोन है। लोन देखो 0,0,0,0,0,0। तो ना इसके ऊपर कोई डेट ऑब्लिगेशन है, ना इसके ऊपर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है जो ये फुलफिल नहीं करता। तो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा रख के फायदा क्या? तो मैं क्या कर रहा हूं, 3,000 एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 16,670 इंटू 100, बोलो 17 8 18%। यार रोने लग गए यार ये लोग। 18% क्या है? तुम्हारे मार्केट कैप का 18% यू हैव इन्वेस्टेड इन व्हाट? नॉन कोर एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज तुमको उतना रिटर्न नहीं दे रही है।
मेरे लिए टीचिंग नॉन कोर बन गया है। क्यों? बाकी एक्टिविटी से ज्यादा पैसा मिलता है, उधर आरओआई ज्यादा है, बट सब चीजें सिर्फ पैसे में वैल्यू नहीं कर सकते ना। उसीलिए मैं सोचा वापस ग्रुप 2 के लिए आते हैं। नहीं तो मैं सोच रहा था ऐसे ही जाऊं और घूमते बैठूं। क्यों? ट्रेडिंग करने के लिए तुमको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए रहता है बस। बट तुम्हारा कोर एक्टिविटी जो है वो तुमको बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है। कोर एक्टिविटी सन टीवी का क्या है? कंटेंट क्रिएट करना और उसको बेचना। वो एक्टिविटी ज्यादा पैसे दे रहा है। ये नॉन कोर 8% के लिए तुम क्यों रो रहे हो? 8% कौन सा? ये ऊपर किधर तो था ना, 8% रिटर्न तुम कमा रहे हो यार उधर से। वो 8 से भी कम रहेगा थोड़ा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 256 म्यूचुअल फंड से अज्यूम किया। 256 का ब्रेकअप मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं क्या करता हूं, अब ये कंपनी क्यों कर नहीं रही है मुझे मालूम नहीं है, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ मुरासोली मारन एंड फैमिली, मारन उनका फैमिली है पूरा, which controls this entire TV. In case you know about Tamil Nadu's politics, DMK family controls this. DMK family, DMK and AIDMK. वो जया टीवी, उसका जया टीवी भी है। जया टीवी कितना चलता है मालूम नहीं, आई डोंट नो। जयललिता had started that particular TV. नहीं, तुमको पॉलिटिक्स वगैरह तुमको मालूम ही नहीं। DMK, AIDMK ऐसे दो फैक्शंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट हुए हैं। तो बॉस इसको कंटेंट चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो उसके पास ऑलरेडी है। जो कैपेक्स करने के लिए पैसा चाहिए वो आ रहा है। मैं 18% ऑफ माय मार्केट कैप इज इन्वेस्टेड इन द एक्टिविटीज विच आर नॉन कोर। सो व्हाट आई कुड थिंक, आई एम अ मैनेजमेंट, आई एम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन केस यू रिकलेक्ट सेक्शन 68, 10% ऑफ टोटल शेयर्स कैन बी बॉट बैक by the board of directors by passing a board resolution. अगर आपको 10% के आगे जाना है 25% तक, तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है शेयर होल्डर्स के मीटिंग में। लेट मी बाय बैक 10% ऑफ द शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने थे बच्चों? 39.4 करोड़ थे यार। क्यों ये लोग इधर सो रहे हैं, मैडम इधर सोने की कोशिश कर रही थी सेकंड बेंच पे बैठ के। ये वो 10-15 दिन सोने की आदत लगे होगे ना इनको घर पे दोपहर में। हाँ बोलते हैं बेशरम गई। एक बुक में तुमको मिला ना ये कंसेप्ट, एक बुक, पूरे कंट्री में नहीं पूरे दुनिया में। नंबर ऑफ शेयर्स, सर आईपीएल टीम इज ऑल्सो देयर, आई नो, सनराइजर्स हैदराबाद, बट आईपीएल टीम का जो उनका एमटीएम है वो बहुत ज्यादा नहीं है बेटा। तेरे को क्या लगता है? मैं क्रिकेट देखता नहीं है, लेकिन मेरे को फाइनेंशियल्स पूरे मालूम है। सनराइजर्स हैदराबाद उन्होंने जो कॉस्ट पे एक्वायर किया था और अभी जो लखनऊ वाला टीम एक्वायर किया, उसके बीच का अगर मैं डिफरेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करूं, मिस्टर अथर्व हुसोयर यू आर, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट्स अ गुड वन, इट्स गुड इन्वेस्टमेंट एट दैट। सनराइजर्स हैदराबाद अभी तक जीता तो नहीं मेरे हिसाब से ना आईपीएल, एक बार जीता था। ओके, तो उनके पास आईपीएल का टीम भी है, सब कुछ मालूम है मेरे को। तो इट हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल। तो मैं क्या कर सकता हूं? 10% ऑफ द शेयर्स आई कैन बाय बैक। बच्चों मुझे बोलो, टोटल कंपनी अगर 16,670 करोड़ में मिल रही है, तो 10% कंपनी कितने में मिलेगी? 1,667 करोड़ में। बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। क्यों? आपको जब बल्क में ये शेयर्स बायबैक करने हैं तो इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ता है? इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। जैसे तुमको टेस्ट लिखना है तो उसको तुमको बोलना पड़ता है, बच्चों टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखोगे तो तुमको मैं चॉकलेट दे दूंगा, टेस्ट लिखो तो तुमको मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, टेस्ट लिखोगे तुम टॉप में आओगे तुमको मेडल दे दूंगा, तुमको ट्रॉफी दे दूंगा, मैं तुमको मैं अमेजोन पे गिफ्ट वाउचर दे दूंगा, 100 रुपए पे जाके तुम या 500 रुपए का जाके चड्डी खरीद सकता है तुम उधर। इंसेंटिवाइज करना पड़ता है बच्चों को आजकल टेस्ट लिखने के लिए। वो इंसेंटिवाइजेशन नहीं रहता है, वो हमको मार्केटिंग करना रहता है इसलिए देना पड़ता है, बट वो हम नहीं करेगा, टेस्ट लिखना पड़ता है तुमको। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुमको शेयर होल्डर्स को बोलना है कि भाई 10% शेयर्स तुम्हारे ऑफर करो कंपनी को। कंपनी वांट्स टू परचेज, सी कंपनी कैन नॉट गो टू द स्टॉक मार्केट एंड स्टार्ट बाइंग इट्स ओन शेयर्स लाइक दैट। यू टू अनाउंस दैट,
You have to pass a resolution and inform stock exchanges. The moment you inform that company wants to buy back the shares, shareholder shares देते नहीं है वही रेट पे, क्यों? उनको मालूम रहता है जब कंपनी बाय बैक करती है ना शेयर्स, प्रमोटर का ओनरशिप कंपनी का बढ़ जाता है. That is the biggest problem for this company. Promoters ownership in listed company can be maximum 75%, and that is the biggest hurdle for this company for not doing a buyback. क्यों? अगर शेयर्स बायबैक किए, पब्लिक के शेयर्स, बाकी रेस्ट ऑफ द पब्लिक के शेयर्स तुमने बायबैक किए, तो क्या होगा? प्रमोटर का जो ओनरशिप है वो परसेंटेज टर्म्स में बढ़ जाएगा, शेयर्स उतने ही रहेंगे. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 39.4 थे ना. देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, क्यों नंबर ऑफ शेयर्स 39.4, प्रमोटर्स के पास कितने हैं? निकालो ना परसेंटेज. 29.55. पब्लिक के पास कितना है? रेस्ट ऑल पुट टुगेदर 9.85. अब तुमको 10% शेयर्स खरीदने हैं. शेयर्स टू बी बॉट बैक, शेयर्स टू बी बॉट बैक. कितने शेयर्स बाय बैक करने हैं तुमको? 3.94. 10%, 39.4 का 10% तुमको बाय बैक करना है ना. अगर तुमको इतने शेयर्स बायबैक करने हैं तो किसके शेयर्स बायबैक करोगे? पब्लिक के शेयर्स बायबैक करोगे, लेट्स अज्यूम. अगर पब्लिक के शेयर्स तुमने बायबैक किए तो प्रमोटर का जो ओनरशिप है वो बढ़ेगा. प्रमोटर का स्टेक कितना हो जाएगा? प्रमोटर स्टेक विल गो अप टू 29.55 डिवाइडेड बाय 39.4 माइनस 3.94 इंटू 100, 83.33%. तो प्रमोटर को भी खुद के शेयर्स देने पड़ेंगे बायबैक में. सबके शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बायबैक करेंगे. हो सकता है वैसे भी बायबैक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर इस कंपनी को बायबैक करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हर एक शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा तेरे पास 10 शेयर है तो 10 में से एक बायबैक होगा. प्रमोटर्स हैव टू टेंडर देयर शेयर्स आल्सो इन अ बायबैक. कैन आई से बायबैक इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड. कंपनी के पास जो एक्सेस 3,000 करोड़ पड़ा हुआ है वो डिविडेंड के फॉर्म में भी कंपनी दे सकती है, बट डिविडेंड के फॉर्म में दिया ना तो नंबर ऑफ शेयर्स कम नहीं होते हैं. डिविडेंड टैक्स फ्री भी नहीं, मतलब टैक्स के लिए उतने इफिशिएंट नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा डिविडेंड अदर इनकम करके टैक्स हो जाता है. बट शेयर्स अगर तुमने बायबैक करवाए तो शेयर्स का जो टैक्सेशन इन्वेस्टर के हाथ में होता है वो कैपिटल गेन के अंदर होता है. कैपिटल गेन के अंदर तुमको डिडक्शन मिलता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का. सेल वैल्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. और अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसका इंडेक्सेशन भी मिलता है विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन. तो जिस साल में परचेस किया था उस साल का इंडेक्स नंबर डिवाइड करना होता है मल्टीप्लाइड बाय द इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर. जो भी नंबर चल रहा होगा अभी, आई डोंट नो, अभी नया सीरीज मुझे याद नहीं है. 317 चल रहा है नया. 2010-11 बेस ईयर है या 20, व्हाट इज द बेस ईयर नाउ? 2001-2 इज अ बेस ईयर. ओके, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है. तो आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत कम आएगा और टैक्स रेट भी कैपिटल गेन का कम है. तो कैपिटल गेन इज ऑलवेज बेटर इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर एज कंपेयर टू डिविडेंड. इनकम टैक्स लिंक किया मैंने, समझा? अज्यूम करो प्रमोटर्स ने भी शेयर्स बायबैक में ऑफर कर दिए, तो इसके भी 10% में बायबैक करता हूं. सबके शेयर्स में कम करने वाला हूं. इनके भी कम हो जाएंगे, इनके भी कम हो जाएंगे, टोटल शेयर्स तुम्हारे कम हो जाएंगे. तो कितना पैसा लगेगा बायबैक करने के लिए? 10% का इक्विटी, वैल्यू ऑफ 10% शेयर्स कितना है? वैल्यू ऑफ 10% शेयर्स इज 1667 करोड़, है ना? 1600 करोड़ के शेयर से वो 10%. टोटल शेयर्स आर 16,670. एम आई राइट? तो 10% शेयर्स आर 16. अंडरस्टूड? बट तुम अगर 1667 के भाव पे खरीदना चाहोगे, शेयर होल्डर्स ऑफर नहीं करेंगे उनके शेयर्स, उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है. वैसे जैसे मैंने आपको बोला ना, तुमको बोला बच्चों टेस्ट लिखो, होमवर्क करो, उतना नहीं लिखेगा. लेकिन मैं तुमको बोलता तुम टेस्ट लिखेगा तो तुमको ये प्राइज मिलेगा. थोड़े बहुत इंसेंटिवाइज हो जाएंगे, थोड़े बहुत. उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सबके सब लिखेंगे.
बिल्कुल नहीं। हाँ लेकिन मैंने बोला तुम टेस्ट लिखो, तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वाउचर मिलेगा। लेट्स से अमेजोन का वाउचर मिलेगा तुमको, 1000 रुपए का वाउचर मिलेगा, इमीडिएटली लिख के लाएंगे, जैसे कभी 1000 रुपए इन्होंने जिंदगी में देखा ही नहीं है। इंसेंट आदमी ह्यूमन नेचर, डिस्काउंट दिखा उधर जाके चालू हो गए। तो वैसे ही अब इंसेंटिवाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूं, लेट अस से कंपनी ने जो बायबैक का ऑफर दिया वो दिया 2000 करोड़ रुपए। कितने पे ऑफर दिया कंपनी ने? कंपनी बोलती 10% शेयर की वैल्यू है 1600 करोड़, लेकिन हम 2000 करोड़ पे बायबैक करेंगे। बट प्रमोटर को भी उसके शेयर्स देने पड़ेंगे, तभी जाके ये बायबैक सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि प्रमोटर का स्टेक जो है वो 75 के आगे नहीं जाना चाहिए, हाँ ना। अब ये होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, देखो भैया, ये होने के बाद तुम्हारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सेम रहेगा। क्यों? ये 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का इनकम था ना, ये 2000 करोड़ जो तुमने बायबैक किया, कहां से बायबैक किया? वो जो एक्सेस 3000 करोड़ तुम्हारे पास पड़ा था ना, वो है। सिंपल लैंग्वेज बात करूं, तुम्हारे बॉडी में बहुत सारी चर्बी पड़ी है, वो चर्बी थोड़ी सी कम हो गई, उससे तुम्हारे इफिशियंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझा मुथा जी? बहुत सारी चर्बी इकट्ठी करके रखी है, थोड़ी बहुत कम हो गई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इफिशियंसी उतना ही रहता है, उससे एक्चुअली बढ़ता है। तो वही हम करने वाले हैं। वो आपने जो 2000 करोड़ एक्सेस जो रीपे किए, कहां से रीपे किए? वो इन्वेस्टमेंट का जो 3000 खोखा तुम्हारे पास पड़ा था ना, उसमें से तुमने बायबैक करवाया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वैसा का वैसा रहेगा। अदर इनकम पूरा का पूरा नहीं जाएगा, 3000 करोड़ पे कमा रहे थे ना, अब 2000 उसमें से हमने यूज कर लिया, तो 1000 पे जो था वो कमाएंगे अभी भी। तो टेक ऑन कैलकुलेटर 256, उसका 1/3 85 उतना तो मिलते रहेगा ना। चलो 0.33 भगवान को दे दो, ऐसे ही छोड़ दो 85। अब ये इंटरेस्ट वगैरह कितना था वो लिखा ही नहीं मैंने, हाँ इंटरेस्ट लिखते हैं, -33 का इंटरेस्ट था तुम्हारा, माइनस डेप्रीसिएशन 306, बोलो पीबीटी बोलो ना, 2025। एक मिनट मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट, बच्चे बोले मम्मी पूरा लिखते नहीं है, 33 एंड 306, 2025 आ गया, माइनस 25%, 25% टैक्स, 511518। इक्विटी तुम्हारा जो 8155 का है, 8155 का जो इक्विटी है वो कम हो जाएगा, 2000 करोड़ चले गए ना उसमें से, तो इक्विटी कम हो जाएगा, 6155 पे आएगा इक्विटी। तो इक्विटी कम आ गया, अरे पैसा वापस गया ना, 2000 करोड़ बैंक बैलेंस तुमने निकाल दिया, अरे बल्ले बल्ले, चौको चौको छे, देखो 1518 डिवाइडेड बाय 6155 कमीनो 22 24.66। बच्चा बोलता है सर क्या सर इतना मेहनत करके तुम 20 से 24 पे गए? अरे गधे, 20 से 24 मत देख, look at it, 4% over 20%, I have achieved almost 20% increase in ROE परसेंटेज टर्म्स में। ये जो 20 से 24 तुमको अगर कम लगता है ना, जिस बच्चे को 49% मार्क आया और जिस बच्चे को 51% मार्क आया, उसको पूछ के देखो 2% का फर्क क्या है। हाँ 2% का फर्क क्या होता है ना, तुमको फिर समझ में आएगा 2% से कितना इंपैक्ट होता है। तो ये तुम्हारा इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से क्या हो गया, 24 हो गया। What I had done? I had done the buyback. What did I achieve by doing a buyback? I created wealth for the investor. I increase my return on equity. As I increase my return on equity, automatically the market price of share will also jump back. TCS का बायबैक अभी आया था, ग्रुप 1 में थे हम, मैंने आपको बोला था, लेकिन वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। आज भी मैं बोल रहा हूं, if let's say this RBI decision is there in this particular week, TCS, HDFC Bank, these are large caps which are
trading way below their valuations. मतलब TCS is still not reversed to their median valuations. The moment TCS returns to its median valuations or mean valuations, there is something called the mean reversion theory. स्टॉक मार्केट में एक थियरी होता है, वो वैल्यू पे TCS अभी तक नहीं आया है, बट यू कैन स्टार्ट, लेट्स से अगर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना है, 2 लाख अभी आप इन्वेस्ट करके रख सकता है TCS के अंदर. 10 लाख TCS में डाला, उसमें 2 लाख आराम से डाल सकता है. क्यों? ये जो IT कंपनीज है, इनके पास इतना भर भर के कैश रहता है. TCS का शेयर जब 3700 पे चल रहा था, तब टाटाज ने वो शेयर्स 4200 में बायबैक किए. 4500 था क्या? 4500 में बायबैक किए थे. क्यों? प्रोमोटर क्या पागल है? नहीं, उसको मालूम है 4500 भी अगर वो शेयर खरीदता है कंपनी के, उसका स्टेक बढ़ता है. टाटा सन्स का स्टेक TCS में जो है, देखो 72 है ना, 72 है ना. गधे, उनको ये नहीं देखना. तुम अगर देखोगे तो धीरे धीरे वो स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं. वो चैरिटी के लिए भी जाता है, वो चैरिटी के लिए पैसा, उसमें से सर्टन शेयर्स आर सोल्ड बाय टाटा ट्रस्ट फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी. बट उसके बाद भी टाटा सन्स का जो स्टेक है वो क्या है? बढ़ गया. बोले सर 72.05 से 72.3 हो गया सर. सिर्फ क्या हो गया? 0.25 से 0.25 में तुम्हारा पूरा खानदान आ जाएगा. 0.25 की वैल्यू ना तुमको मालूम नहीं है क्या है. 0.25% इंटू 12,55,000 करोड़, 12,55,000 इंटू 0.25% करो, और फिर तुमको समझ में आएगा तुम्हारा खानदान आता है कि नहीं. कितना है? 3138 करोड़, 3000 करोड़. बोलो आएगा क्या तुम्हारा खानदान उसमें? आराम से आएंगे ना. तो 0.25% लगता है, 0.25% नहीं, उससे बहुत वेल्थ क्रिएट होता है. दैट इज आफ्टर selling of the shares by Tata Trust in their individual books for the purpose of doing various charitable activities. They do a lot of charitable activities. So when companies promoters find that shares are trading in the market at rock bottom levels, or market is not trying to understand the true value of the company, shares are undervalued in the market, you should do the buyback. Company should just go ahead and do the buyback. Apple के buyback की size जो है ना, is bigger than the total value created by Reliance. एप्पल का जो सबसे लोएस्ट आइटम है, जो सबसे कम सेल जनरेट करता है एप्पल के लिए, दैट आइटम सेल्स इज मोर देन द टोटल सेल्स ऑफ TCS. विच इज आइटम विच जनरेट लोएस्ट सेल्स फॉर एप्पल? दैट्स iPad. iPad generates least amount of sales for Apple, but sales of iPad total put together is more than the total sales of TCS. That's the size of Apple. Apple ने इतने buybacks किए. क्यों? Whenever the crisis happens, public doesn't understand. See, market is irrational. It is something like, एक तुम एग्जाम का पेपर लिख रहे हैं, पेपर में एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, इमीडिएटली अरे यार क्या पेपर था यार सालम, मेरे टाइम पे ऐसा पेपर निकालने का था, इमीडिएटली जाके यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू कर देते. पेपर टफ था. अकाउंट्स का पेपर अभी May 22 का बच्चे बोल रहे थे बहुत डिफिकल्ट है, यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे. कितने लोगों ने सॉल्व किया रे? ग्रुप 1 अकाउंट्स May 2022 का. गुड. कितना डिफिकल्ट लगा तुमको? इजी था. कुछ क्वेश्चंस लेंथी था, बहुत लेंथी था मालूम है, बट ऐसा भी नहीं था कि उसमें तुम टुकुर राहुल द्रविड़ की जैसा खेल के 50 नहीं ला सकता था. 50 आराम से ला सकता था. बट इरेशनैलिटी ह्यूमन बीइंग की, वो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखा, मम्मी मैं नहीं देता पेपर. इरेशनल. तो मार्केट भी ऐसा ही होता है. मार्केट को बहुत बार कंपनी की ट्रू वर्थ क्या है वो नहीं समझती है. सन टीवी की भी ट्रू वर्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं समझी है. क्यों? सन टीवी के प्रॉब्लम्स, Sun TV's management has to come forward and they have to make a bold statement that yes, we are in business. But वो statement वो कर ही नहीं रहे. That even if whenever Sun TV makes such kind of announcement, Sun TV will jump up by 10-20% that particular day. Even if it jumps up by 10% that day, I will buy immediately on that day whatever the price without looking at the screen. क्यों? Their company is valued at what? 10 times of its profit. 10 times of profit means a very
low valuation. It's a very low valuation. You will understand reciprocal of PE ratio plus the growth that is achievable by company. PEG ratio करके एक है, रेशो एनालिसिस चैप्टर में सिखाऊंगा एफएम के अंदर. आपको समझ में आएगा कि ये कितना सस्ता कंपनी है. अभी बहुत सस्ते माल पे तुमको ये कंपनी मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सस्ते से महंगा होने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं मालूम. सस्ते से महंगा होगा या नहीं होगा ये भी नहीं मुझे मालूम. क्यों नहीं मालूम? ये कंपनी ने वेल्थ क्रिएट करना चाहिए. वो 3,000 करोड़ जो इन्वेस्ट करके रखा है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो वेल्थ डिस्ट्रॉइंग है. योर टोटल कैपिटल जो है 16,000 करोड़ की जो मार्केट वैल्यू थी, इधर गई. हाँ, उसमें से 18% मार्केट वैल्यू तुमने ऐसे एसेट में लगाई है जो रिटर्न ही नहीं जनरेट करता है. तुम्हारे वेट का लार्ज परसेंटेज अगर चर्बी बन के बैठा हुआ है. हाँ मंथन जी, तो उसको कम करना चाहिए. मैंने कम किया है इसलिए बोल रहा हूं. हाँ, मेरे को मालूम है. हाँ, मैं ट्रैक रखा है. क्या एक्सेल फाइल बना के रखा है मैंने उसका. 2018 में क्या लेवल था, अभी लेवल क्या है. हर साल अपना बैलेंस शीट बना के रहता हूँ. तो कम हुआ है. हाँ हाँ, चलो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है वो बात करें, लेकिन वो कंपेयर मत करो ना. तुम पास्ट में परफॉर्मेंस क्या था वो कंपेयर करो ना. वही है कंपनी का. तुम्हारे बॉडी का लार्ज परसेंटेज वेट अगर तुम चर्बी के फॉर्म में रख रहे हो तो क्या होगा? ए मोटा भाई, क्या होगा? इनइफिशियंसीज क्रिएट हो जाएगी. तो वैसा ही है कंपनी का लार्ज चंक. 18% ऑफ कंपनीज कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन नॉन कोर एसेट्स. अब आपको ये सुनना है तो ट्रेंड लाइन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो ट्रेंड लाइन. इट इज नॉट LINE बिफोर यू थिंक. इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ यूट्यूब का वीडियो मैंने शेयर किया था तुमसे. सन टीवी ट्रेंड लाइन कॉन्कॉल. ये कॉन्कॉल सुनो जो बजाई है सन टीवी के मैनेजमेंट की. अभी ये Q2 FY22. आवाज किधर जाएगा मुझे नहीं मालूम. हाँ, Q2 या Q1 वो मुझे मालूम नहीं है. सिर्फ आवाज जाएगा किधर इसका? बिकॉज दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज ऑडियो. अरे वीडियो नहीं होता बेटा, मुझे मालूम है. कॉन्कॉल इज नॉट अ वीडियो, यूजलेस थर्ड क्लास. आवाज किधर जा रहा है मालूम नहीं. ये यूट्यूब पब्लिक, आर यू एबल टू हियर? ये एप्पल का आवाज किधर भेजता है वो नहीं मालूम मुझे. दिस इज एप्पल्स प्रॉब्लम. ऑडियो कहीं और ही भेज देता है. तो ये तुमको ये जो कॉन्कॉल्स है ना, कौन से वाले, इसमें से एक कोई तो 2021 का. इस कॉन्कॉल को अगर आप सुनोगे, आई हैव टू लिसन इट आउट एंड देन लेट यू नो. नो सर, ओके. तो इसमें से एक कॉन्कॉल है ये. इसमें से Q4 FY22 FY22 टू Q4 नहीं Q4 FY21 रहेगा. Q4 FY21 और लॉकडाउन के अंदर ही ऐसी बजाई थी. एक इन्वेस्टर है सन टीवी के अंदर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है. मैंने शेयर किया था यार, एक कोई तो बैच को शेयर किया था मैंने. लेट मी जस्ट सर्च. लेट मी ट्राई टू सर्च इफ आई कैन सर्च. तुम अगर ये सुनोगे तो तुमको तुम्हारा, हाँ मिल गया. Q4 FY21 मैं तुमको भेज रहा हूं. मिल गया. तो इस कॉन्कॉल के अंदर, आई होप यू नो कॉन्कॉल, तुम्हारे ग्रुप पे मैंने शेयर किया, टेलीग्राम पे आया होगा. आ गया क्या? So it's a con call. If you listen to this particular con call afterwards, you'll come to know initial discussion. Management presents a profitability, and thereafter one investor comes there and he has blasted off the management like anything. But उसके बाद भी management कुछ बदली नहीं है, क्योंकि political family है. उनको पब्लिक के व्यूज क्या है या बाकी चीजें क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी
उनका एजेंडा क्या है, इस कंपनी के पीछे क्या है, वो उनको ही मालूम रहेगा. इट विल बी ओनली दैट फैमिली. वेदर देयर ऑब्जेक्टिव इज टू रन इट एज अ प्रोफेशनल कंपनी और ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू प्रोपोगेट देयर प्रोपोगंडा ऑफ डीएमके's पॉलिटिकल पार्टी ऑन दैट चैनल, दैट आई डोंट नो साउथ इंडिया पॉलिटिक्स टू दैट लेवल कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. If the management's objective is just to propagate their own politics there on the Sun TV's news channels, because I don't understand any of the South Indian language. तो वो ऑब्जेक्टिव अगर है सन टीवी का, तो फिर कंपनी में इन्वेस्ट करके फायदा नहीं. बट मैंने आपको क्या बताया, कंपनी उसका वैल्यू कैसे बढ़ा सकती है. ये देखो, दूसरा कंपनी दिखाता हूं, जी एंटरटेनमेंट. लुक एट द स्टॉक पी. जी इज वैल्यूड, जी इज इन सेम बिजनेस ना, सिर्फ फर्क क्या है, जी इज प्राइमरली इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, मेजॉरिटी हिंदी. इंग्लिश वाला उनका जो है वो चलता भी नहीं, हिंदी प्राइमरली चलता है. तो जी भी उसी बिजनेस में, फर्क लैंग्वेज का है सिर्फ. जी रीजनल लैंग्वेजेस में भी है. जी इज वैल्यूड एट व्हाट वैल्यू, 22 टाइम्स. देन व्हाई द हेल सन टीवी इज वैल्यूड. जी का वैल्यू देखो कितना है, कितना करोड़ है, 23,000 crore. डू यू वांट गेट शॉक, यू वांट गेट शॉक. Look at Z's operating profit margin, way lower than Sun TV. Look at ROC, way lower than Sun TV. Look at ROE, way lower than Sun TV. Look at PAT, way lower than Sun TV. Way lower than Sun TV. Z has every parameter which is pathetic as compared to Sun TV. But still Z is valued better. Why the hell so? क्योंकि Z के अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब वो चला जाके Z is going to be taken over, I hope you know, by Z and Sony are going to merge. Z में वो टाइम पास नहीं है जो सन टीवी जैसा फालतू चीज कर रहे हैं. Z is corely focused on their Z5 करके उनका एक OTT प्लेटफॉर्म है. Z is focused. सन टीवी वो समझ में ही नहीं आ रहा है यार इन्वेस्टर को कि भाई तेरे पास 3,000 करोड़ के आचार बनाने के लिए डाला है तूने उधर, मेरे पास 3,000 करोड़ है, तुम्हारे पास क्या है. हाँ यार, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, साउथ इंडियन एक्टर का डायलॉग नहीं था. वो क्यों पैसा लेके बैठा है किसी के पप्पा को पता नहीं है. हाँ, अगर एक बंदे ने उस कॉन्कॉल के अंदर ये भी पूछा है, ये बैंक बैलेंस सच में है क्या तुम्हारे पास या फ्रॉड है कि तुमने बैलेंस शीट पे ऐसे ही दिखाया. फिर उसका वो मैनेजमेंट, वो जो सीएफओ है वो गुस्सा हो गया, भाई ऐसे बजाना चालू किया उधर उसने. फिर इन्वेस्टर बोला ठीक है छोड़ दो. अरे मतलब तुम्हारे पास 3,000 करोड़ है, म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट करता है यार. शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बाय डूइंग अ बायबैक सन टीवी कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू. टीसीएस हैज इंप्रूव्ड द वैल्यू. एप्पल के बायबैक साइज देखना है तुमको. एप्पल कितना बायबैक करता है, एप्पल इंक बायबैक अमाउंट्स, यू विल गो मैड. 27 अप्रैल, जस्ट 1 month का है. एप्पल इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ शेयर बायबैक प्रोग्राम ऑफ एज मच एज $90 billion. दिस इज वन बायबैक प्रोग्राम. दिस आर अ टोटल ऑफ ऑल बायबैक्स. One buyback at one point of time. You can keep on doing a buyback multiple times. TCS has done the multiple buybacks in the history. Apple का ये एक buyback है. टोटल अगर उसका पूरा Apple rise to 3 trillion market cap shows its massive share buybacks. ये जनवरी का है. Apple keeps on doing a buyback. Apple continuously buyback करते रहता है मार्केट से. हमारे इंडिया में अभी तक मार्केट से buyback करने वाला कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं है. तो look at this. Apple, the poster child for a share buyback, has spent more than $467 billion in the last 10 years on buybacks. 1 billion is 7,700 crore. Take on a calculator. 467 into 7,700. It is more than the Reliance. 25 lakh. Reliance is around 19 lakh. और कल के रैली के बाद 20 लाख करोड़ है लगभग. 26 लाख है ये. 36 lakh crores. 467 into 7,700 is 36 lakh.
36 लाख करोड़ रुपीस का बायबैक अकेले एप्पल ने किया है। बायबैक क्या, एप्पल के पास जो एक्सेस कैश आता है वो डिविडेंड के फॉर्म में देने के अलावा एप्पल बायबैक के फॉर्म में देता है। बायबैक से एडवांटेज क्या होता है, जो लोग बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते उनका परसेंटेज ओनरशिप बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, ये प्रमोटर्स ने अगर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्रमोटर्स के जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स विल रिमेन बट देयर ओनरशिप इन द कंपनी विल जंप अप, विच इज नॉट अलाउड। सन टीवी के केस में वो अलाउड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे आर एट द अपर सीलिंग ऑफ द बायबैक। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड सो फार। जाने दो, अब जर्नल एंट्रीज पे आता हूं। और कितना बकबक करूं, और है मेरे पास सिखाने के लिए बहुत, लेकिन नो नहीं यार, रिस्क, यही रिस्क मैंने लिया। यही आधे लोगों को पहले लेक्चर में साला क्या सिखाना चालू कर दिया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेमो वाला पब्लिक बैठा होगा इधर कुछ। सो आई डेमो पब्लिक, हमको सिखाने आता है कि नहीं आता, तुम देखने आए हैं। हाँ, तुम्हारा लेवल नहीं हो सकता हमारे लेवल से आके, हम तुम्हारे लेवल पे नहीं आएगा। हमारा जो लेवल है वो लेवल है। तो एंट्री सिखाता हूं, एंट्रीज भी आते हैं कि नहीं चेक करना मुझे। एनीवन हैज अ डाउट ऑन द कांसेप्ट सो फार? तो बायबैक क्रिएट करके तुम, यू कैन क्रिएट अ ह्यूज वैल्यू। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई कंपनीज डू बायबैक। दिस इज द वन रीजन व्हाई, व्हाट आई टोल्ड यू। सन टीवी के केस में अगर उन्होंने बायबैक किया, द रीजन इज कंपनी इज वैल्यूड एट pretty cheap amount as compared to its true value, in my opinion. Management might have the same opinion or management might have different opinion. I don't know what is the view of the management. That is what this con-call सुनो, आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, बात कैसे करनी होती है, वो समझ में आएगा। यू कैन टेक अ पार्ट। आप लोगों को तो पार्ट नहीं मिलेगा con-call का कभी, क्योंकि आपके पास उतने शेयर्स नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, बट जिंदगी में कभी ना कभी जाके आपके पास पैसा आएगा। उस टाइम पे दिमाग आएगा क्या, उसकी गारंटी नहीं। दिमाग आज से गैदर करना चालू करो। तो वो कॉल को आज सुनो, आप सुनने के बाद आपको समझ में आएगा, हाँ अच्छा है, ऐसा होता है। तो रीजन वाई सन टीवी कैन क्रिएट अ ह्यूज वैल्यू, टीसीएस हैज क्रिएटेड अ ह्यूज वैल्यू। टाटास ने उनका ओनरशिप ओवर द ईयर्स बढ़ाया है। और मैंने आपको एक शेयर भी किया था, जब भी कभी, अब ये एक्सेप्ट दिस बायबैक, इन द हिस्ट्री टीसीएस व्हेनेवर इट डिड अ बायबैक, विद इन 2 months टीसीएस शेयर प्राइस वेंट अप टू दैट पर्टिकुलर बायबैक प्राइस। 2 महीने के अंदर टीसीएस ने वो प्राइस किया था। इस बार नहीं हुआ बिकॉज इस बार रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ, तो वॉर की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गया और मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे। बट लुक एट दिस, ट्रेडिंग व्यू से, ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू से ज्यादा तुमको सिंपल फॉर्मेट में दिखा दो, चलना है। लुक एट दिस, टीसीएस का एक सिंपल वैल्यूएशन मेट्रिक में दिखाता हूं यहां पर, देखो। तो इसमें पी रेशियो वाइज देखने दो। TCS, if you can see, is a mean value, which is this dotted line. Left hand side, this is a multi-axis chart. Median P of TCS is how much? 23.2. TCS had gone way ahead. TCS is still way ahead of that 23.2. So TCS is roughly around at 30 levels right now. TCS is trading at 32.8. It is way above the median valuations. It is not at a median valuation. So TCS, still there is a scope that it could fall back. But if TCS falls in terms of valuations, Tatas will come forward and come up with what? New buyback. They will not just give dividend. Instead of giving a dividend, they announce what? Buyback. डिविडेंड का पैसा इन्वेस्टर्स को वापस करने के अलावा हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को बोलते तुम्हारे शेयर्स तुम ऑफर करो स्टॉक एक्सचेंज पे, ब्रोकर के थ्रू तुमको शेयर्स ऑफर करने होते हैं, तुम शेयर्स ऑफर कर लो, कंपनी क्या कर लेगा, शेयर्स खरीद लेगा। मैंने आपको परसों एक ट्वीट या तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था ना मैंने, जाइडस लाइफ साइंसेस, कोई तो बोल रहा था जाइडस वेलनेस इज नॉट लिस्टेड।
कौन था रे वो? एक बच्चा मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा था उधर। वेलनेस लिस्टेड नहीं है, बायबैक वेलनेस का नहीं है, मुझे मालूम है, तूने वेलनेस लिस्टेड नहीं बोला था तू। तो जाइडस लाइफ साइंसेस हैज कम अप विद द बायबैक। विपाशा बसु एक जमाने में इसका एडवर्टीजमेंट करती थी। शुगर फ्री करके एक प्रोडक्ट है जो बहुत तरह बिकने लग गया था इंडिया में, अभी भी बिकता है, बट एडवर्टीजमेंट का भी जरूरत नहीं। शुगर फ्री वैसा गोली के जैसा आता है, शुगर फ्री करके, ये जाइडस मेक्स इट। तो जाइडस अनाउंस्ड बायबैक, ये बायबैक का डेट हो चुका है। यू कैन नॉट, इफ यू बाय इट नाउ देयर इज नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ पार्ट ऑफ द बायबैक। लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज ऑनगोइंग बायबैक। अभी इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के वेबसाइट पे मिलता है, पूरे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। जाइडर इन्वेस्टर रिलेशंस, तो जाइडस लाइफ साइंसेस, इन्वेस्टर जोन, उसमें बायबैक का है, बायबैक 2022 मिल गया क्या? जाइडस लाइफ साइंसेस, तो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, पब्लिक अनाउंसमेंट, न्यूज़पेपर कटिंग, बायबैक का रेजोल्यूशन 20 मई 2022 को हुआ था। तभी मैंने आपको जाके 2-3 दिन के बाद ये किया था। अब देखो प्रमोटर क्या करने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो। 20 मई को प्रमोटर ने लिखा है, जाइडस के प्रमोटर ने कंपनी को बोला, कंपनी ने इधर बोला, देखो कंपनी का प्रमोटर बायबैक में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? इफ द प्रमोटर इज नॉट participating in a buyback, it indicates he is even more confident about the company. अगर वो खुद के शेयर्स बायबैक नॉर्मली जो करंट मार्केट प्राइस रहता है उसके ऊपर रहता है, क्यों? अकल लगाओ ना, मार्केट में शेयर चल रहा है 350 को फॉर एग्जांपल, कंपनी बोलता है हम 250 में बायबैक करेगा, कोई इन्वेस्टर 250 में शेयर वापस देगा? बायबैक करते कब है? जब कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी की फेयर प्राइस इधर है और मार्केट इधर है, बैल बैल नहीं है, गैप, तब जाके बायबैक करने का प्लान करते हैं। और उसमें अगर प्रमोटर खुद के शेयर्स बायबैक में ऑफर नहीं कर रहा है तो वो एक, इट इज नॉट अ गारंटी, it is one of the indicator that a promoter is confident. Promoter is confident, it's one of the indicator. So देखो, this is in continuation of our letters dated so and so. So where the board of directors of company decided to undertake a buyback of shares not exceeding 1,15,38,000 shares, fully paid up, of having a face value of 1 rupee each share, representing 1.13% of total equity shares. जैसे मैंने अभी सन टीवी के लिए 10% बोला था बायबैक करेंगे, यहां पर कितना बायबैक कर रहे हैं वो? सिर्फ 1.13% शेयर्स। आप बोलेंगे क्यों सर, कम क्यों इतना? अरे उनके पास उतना ही एक्स्ट्रा पैसा होगा, तो इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बायबैक, दैट इज व्हाई इट विल नॉट हैव अ ह्यूज जंप इन द प्राइस ऑफ शेयर्स एट 650 रुपीज। शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? 360 मार्केट में। अबे साला 360 का शेयर, मतलब तुम बोलते हो सर मैं अभी खरीदता हूं 360 में और बायबैक में 650 में ऑफर करता हूं, नहीं होगा, चला गया डेट। इसलिए मैंने टेलीग्राम को एडवांस में डाला था, 1 जून के पहले शेयर खरीदना करना चाहिए था। तो 1 जून के पहले जिसने भी खरीदा होगा वो उसके शेयर्स बायबैक में कंपनी को ऑफर कर सकता है। उस टाइम पे प्राइस जब मैंने कोट किया था 370 था, अप्रॉक्स 370 के लगभग प्राइस था। 370 में खरीद के तुम 650 में बेच सकते हो। बोलूंगा हाँ इतना प्रॉफिट? टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 650 माइनस 370 अपॉन 370, 75%। इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि सबके सब शेयर्स नहीं खरीदेंगे वो। तुम्हारे पास अगर 5 शेयर है, 10 शेयर है, 1000 है, तो पूरे के पूरे शेयर्स नहीं खरीदेंगे, कुछ शेयर्स खरीदने वाले हैं। कितने शेयर जाएंगे तुम्हारे बायबैक में? दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल ऑफर द शेयर्स फॉर बायबैक। लाइक आईपीओ, बायबैक इज अ रिवर्स ऑफ द आईपीओ। आईपीओ में जैसे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड रहता है, वैसे यहां पर भी रहता है। कंपनी कितने शेयर्स बायबैक करने वाली है?
1,15,00,000। अब आएंगे कितने ऑफर वो मुझे कैसे पता, बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो रफली जितने भी शेयर तुमने खरीदे हैं, जितने भी शेयर तुमने खरीदे हैं, वो शेयर का 15%। तुमने अगर 1,000 शेयर खरीदा तो 150 शेयर तुम्हारे बायबैक में चले जाएंगे। तो आप बोलेंगे बाकी 850 शेयर वो तुम मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उन शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं गिरने वाला है, और अगर गिर भी गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक कंसेप्ट बोला था, पुट ऑप्शन खरीद के रखना। पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल द शेयर्स, यू कैन बाय पुट ऑप्शन, बट वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि शेयर बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं है। क्योंकि व्हेन कंपनीज प्रमोटर इज सेइंग, और कंपनी सेइंग कि हम 650 में खरीदने वाले हैं, जो शेयर मार्केट में 370 को चल रहा था, 370 की चीज कंपनी कितने में खरीदने को तैयार है? क्या पागल समझे है क्या उनको? हु हैज मोर नॉलेज अबाउट द कंपनी, यू और द प्रमोटर? प्रमोटर इनसाइडर है वो। देखो ससुरा क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ऑफ सो एंड सो अमाउंटिंग टू 750 करोड़, 750 करोड़ का बायबैक है ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू द टेंडर ऑफर रूट। हर एक के शेयर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाएंगे। In terms of the buyback regulations, the members of the promoter and the promoter group of the company and the persons in control of the company have the option to participate in the buyback. We would like to inform that members of promoter group or the persons in control of the company, via their letter dated 20 May, have communicated their intention to participate in buyback. मतलब प्रमोटर भी उसके शेयर्स बायबैक में ऑफर करेगा। बोले ये तो नेगेटिव है, हाँ, बट ये क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है प्रमोटर यहाँ पर? क्योंकि ये बायबैक कौन से बेसिस पे है? इधर लिखा था प्रोरेटा बेसिस पे है। ये बायबैक ओपन ऑफर रूट में नहीं है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट मतलब तुम्हारे पास अगर 100 शेयर है तो 100 में से हम क्या करेंगे? 10 शेयर्स बायबैक करेंगे। क्यों दिखाता हूं, हैव पेशेंस। जाइडस वेलनेस, मैं नीचे आ जाता हूं आगे। यहां पर प्रमोट शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर यहां पर क्यों शेयर्स ऑफर कर रहा है, रीजन देखो। ये निगेटिव नहीं है, प्रमोटर उसके शेयर्स ऑफर कर रहा है। क्यों? अगर उसने ऑफर नहीं किए तो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, और रूल के हिसाब से अलाउड। वो ऑलरेडी 75 पे बैठा है, तो 75% पे वो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो इसलिए प्रमोटर को शेयर्स ऑफर करने ही पड़ेंगे। वही सन टीवी कर सकता है, बट ये करने से प्रमोटर क्या करने वाला है? खुद की जो कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। मतलब दे आर सेइंग द रियल वर्क, इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट दैट कंपनी इज मेकिंग। बॉस, आर रियल वैल्यू इज नॉट 350 रुपीज पर शेयर, और 350 यार क्या जो भी चल रहा था 360 में चल रहा है। देखो पी रेशो इसका भी लो है। तो प्रमोटर इज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट। नाउ विल ही बी सक्सेसफुल और नॉट, आई डोंट नो, बट इन माय ओपिनियन, देखो तुमने 1,000 शेयर खरीद लिए, कितने के भाव पे? 360 के भाव पे। तो नहीं, ये 1,000 में खरीद के फायदा नहीं, 500 खरीदने पड़ेंगे। क्यों? स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन रहता है, ये कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होता है। स्मॉल शेयर होल्डर का डेफिनेशन होता है जिसके पास 2 लाख रुपए का शेयर्स है। 500 इंटू 360 बोलो, 1,80,000 के शेयर्स तुमने खरीदे। कितने के खरीदे? 1,80। तो 1,80, ये जो 500 शेयर्स खरीदे ना, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 15% will be given back to the company, given back at the rate of what, 650 per share। और जो बाकी के 85% शेयर्स है, ये सेल इन द मार्केट एट, ये बायबैक ऐसे एक दिन में कंप्लीट नहीं होने लगे, 2-3 महीने लगने वाला है इसको बायबैक का डेट उसका चेक करना, 2-3 महीना। इट्स गोइंग टू टेक एंटायर जून, जुलाई, अगस्त। By 31st August, I expect this particular share to trade in the range of around 410 per share. That is my expectation. तो तुमको क्या मिलता है? प्रॉफिट कितना मिलता है? जो 300, ये 650 पे गया ना, 650 माइनस 360 इंटू 150 शेयर्स, ये प्रॉफिट हो गया तुमका। और यहां पर ये 410 माइनस 360 इंटू 350 शेयर्स, ये प्रॉफिट का अमाउंट है। बोलो पहला अमाउंट कितना था? 43,000। दूसरा अमाउंट कितना है?
17,500। टोटल अमाउंट कितना है? 60। क्या? कौन सा गलत बोला इन्होंने? 5? क्या गलत बोला है? अमाउंट गलत 150। 75 है क्या इधर? अच्छा, इधर 75 शेयर है और इधर 425 है। नंबर ऑफ शेयर्स गलत लिए। हाँ, मैंने 1000 के हिसाब से कैलकुलेट किया था। हाँ, अमाउंट सही है क्या गलत है? 21,000 एंड 21,250। 43,000 एग्जैक्ट। 43,000 का प्रॉफिट तुमको हो सकता है। अब ये रेशो क्या आएगा, एक्सेप्टेंस कितना होगा, क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल ऑफर द शेयर्स फॉर बायबैक। और यहाँ पर तुम्हारा बायबैक जब कंप्लीट होगा तो समझ में आएगा प्रमोटर का इंटेंट, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, पब्लिक अनाउंसमेंट चलते रहेगा। तो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, द शेयर विल बाउंस बैक। क्यों? इट्स अ स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू मेक, because our real worth is much higher, and that is on 1,80,000. It's not a bad amount to make. एंड इफ 2 लाख तक आप, मैंने जो बोला था आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है बिकॉज मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं लिया। यू कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाई इवन ₹20,000। यू कैन नॉट डू दिस नाउ, ये डेट जा चुका है इसका, दिस डेट इज गॉन। लास्ट 1 जून तक ये इन्वेस्ट करना था। तो कंपनीज बायबैक करके क्या करते हैं, उनके पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इन्वेस्टर को वापस देते हैं। जैसे तुम डिविडेंड देते हो वैसे ही ये बायबैक होता है, लेकिन बायबैक इज वे मोर सुपेरियर देन डिविडेंड। फिर आप बोलोगे सर डिविडेंड देते ही क्यों है, बायबैक ही करेंगे हर साल। हाँ, नहीं, क्योंकि तुम बायबैक कितना कर सकते हो उसके ऊपर लिमिट है। अगर तुम बायबैक करने चालू हो गए हर साल प्रॉफिट में से, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डिविडेंड यू कीप ऑन डूइंग अ बायबैक, यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर इज अ लिमिट। बोलेंगे क्या लिमिट है? डेट इक्विटी रेशियो का एक लिमिट है जो हम आगे जाके अभी लॉ करेंगे। अभी तक मैंने आपको ये फाइनेंस बोला, अभी तक मैंने आपको इनकम टैक्स बोला, मैंने अभी तक आपको लॉ नहीं सिखाया। सेक्शन 68 में लिमिट्स है कि तुम कितने मैक्सिमम बाय। इंडिया इज अ कंजर्वेटिव कंट्री in terms of, if I look at the regulatory framework of India versus the developed nations, we are extremely conservative in terms of regulatory framework. तो यही चीज अगर एप्पल करता है यूएस के अंदर, एप्पल कैन yes go in and keep on doing a buyback of the levels that they want. If the Apple finds that, or Berkshire Hathaway, if you look at the, if Berkshire Hathaway finds no opportunity to invest their money in other businesses, what they do? They just buy their own shares. Whenever the company's management or the promoters feel that the company shares are valued in the market at a much lower price than the fair price, promoters, clever promoters, to buy back. Let me give a kick-ass example. मैंने आपको ये दिया भी था शायद. There is one very very clever fellow, Anil Agarwal. I don't know how many of you know this fellow. मैंने एग्जाम्पल दिया था इनका ग्रुप 1 के अंदर. वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज मालूम है? कोविड फर्स्ट वेव, somewhere about 2020 Diwali, close to that, Vedanta was trading at around 70 rupees per share or maybe below that. अनिल अग्रवाल ने बोला आई वांट टू डीलिस्ट द कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बहुत सस्ते भाव पे बिक रहा था उस टाइम पे। देखो वेदांता, लेट अस लुक एट 2020 मार्च 2020, कोविड के बाद 75 पे चला गया था, 70 वही भाव पे था वो, लगभग उधर 70 वगैरह के भाव पे था। तब मैनेजमेंट में बोला था हम इसको कितने में खरीदने को तैयार है, 80 रुपए में। अनिल अग्रवाल ने ऑफर दिया 80-90 के लगभग, कहीं तो ऑफर था उनका कि जितने भी शेयर्स पब्लिक के पास है वो सब के सब शेयर में जो और भाव पे शेयर चल रहा है मार्केट में उससे ज्यादा पे खरीदने के लिए तैयार है। एक आदमी ने इसको रोक के रखा, अनिल सिंघवी। तुम अगर वेदांता का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, प्रमोटर ग्रुप वेदांता,
ये क्या है? वेदांता के पास 70% शेयर्स इनके पास थे, प्रमोटर के पास। उस टाइम पे भी वही थे, उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया। देखो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो, लुक एट दिस, मार्च 20 लॉकडाउन जब आया था तब कितना परसेंट था? 50। 50 से कितने पे चला गया? 69। कुछ बायबैक के थ्रू उन्होंने किया, फिर बायबैक बाद में अनाउंस किया, कुछ ओपन मार्केट से वो शेयर्स खरीदते गए। Promoters can buy shares in open market. He wanted to increase his stake. Why? He knew that the company's true worth is much more. He has seen multiple commodity cycles. अल्ट्रा टैलेंटेड बंदा है, बिहार के गांव से आया हुआ बंदा है। जब वो बात करेगा तो आपको लगेगा भी नहीं यार, मतलब आप बोलोगे अरे इसको इंग्लिश भी ठीक से नहीं आता है। लिसन टू अनिल अग्रवाल, एक्सट्रीम जेंटलमैन, हाईली हाईली ग्रेट फिलॉन्थ्रोपिक पर्सन। मतलब बंदा उसने इलीगल कुछ भी नहीं किया था। Whatever he did was a shrewd businessman, clever logic. He understood that the Vedanta is not worth 70. He knew that the market is full of idiots, bullshits, but he can't say that. He can't go out on the television and say, hey, you bullshit investors, ये शेयर 400 का है, तुम 70 पे चला रहा है इसको मार्केट में। ये नहीं बोल सकता ना वो। What he could do is, he could say, मैं शेयर्स मार्केट में ज्यादा भाव पे खरीदने के लिए तैयार है, तुम शेयर्स कंपनी बायबैक कर लेगा, तुम बेचो। अनिल अग्रवाल ने ये बोला, बट वहां पे दूसरा अनिल था, अनिल सिंघवी। उन्होंने क्वेश्चनिंग चालू करना चालू किया। मैंने आपको वीडियो शेयर भी किया था, आपने जो देखा नहीं होगा, ग्रुप 1 के टाइम पे मैंने आपको बोला था। अनिल सिंघवी जी ने उनको पूछा, लाइव टेलीविजन पे पूछा कि भाई आप क्यों बायबैक कर रहे हो? ही कुड नॉट आंसर। और अनिल सिंघवी ने उसका इंटरव्यू खत्म होने के बाद खुल्लम खुल्ला बोलना चालू कर दिया, कुछ भी हो शेयर्स बायबैक पे नहीं देने के, 300 रुपए तक भाव आने दो, उसके बाद हम देखेंगे। क्योंकि उसका वर्थ कंपनी का बहुत ज्यादा था। यू लुक एट कमोडिटी साइकिल्स व्हेन दे स्टार्ट रनिंग इन, लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द कंपनी अचीव्ड। कंपनी लॉस कर रही थी, प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 20,000 करोड़, 27,000 करोड़, 44,000 करोड़। कमोडिटी साइकिल्स इफ दे स्टार्ट रैलिंग, दे रैली लाइक एनीथिंग। अनिल अग्रवाल नोज कमोडिटी साइकिल बेटर देन एनीवन, एंड इन्वेस्टर्स कमोडिटी में एक बहुत बढ़िया बंदा है। रीड variety of books by this fellow or the videos also. बसंत माहेश्वरी करके बंदा है, वेरी ट्रूड इन्वेस्टर। कमोडिटी साइकिल्स के दो बहुत बड़े नाम है, एक इन्वेस्टर साइकिल पे, एक ऑपरेटिंग साइड पे। अनिल अग्रवाल इज ऑन बिजनेस साइड एंड बसंत माहेश्वरी करके बंदा है। वसंत नहीं है, बसंत। कुछ पैसा नहीं था, ये सब सेल्फ मेड पर्सन है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर जस्ट few thousand rupees they have created a wealth of billions of rupees. Anil Agarwal तो मतलब पूछो मत, Anil Agarwal will be in, he is not a resident of India now, so he should be within top 5 Indian richest Indians. और अगर उसने philanthropy नहीं किया तो he could be at the par with the Mukesh Ambani, but he's just not the part of India. He stays in London. I don't think he has a residential status of India also now. You don't know the size of the business. He knew, he understood it. एजुकेशन वाइज देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे। उनका फॉर्मल एजुकेशन विकिपीडिया पे अगर रहेगा, एजुकेशन है, अरे ये क्या है, अच्छा आई डोंट थिंक कॉन्ट्रोवर्सी, एजुकेशन विकिपीडिया पे रखेगा ही नहीं। स्कूल, हाँ, ही स्टडीड इन द हाई स्कूल, बस खत्म। हाई स्कूल अभी मतलब उनके जमाने में हाई स्कूल क्या रहेगा मालूम है, 6th 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा या कुछ, व्हाटएवर, खत्म। एजुकेशन ही नहीं उसके बाद। बट हाँ, अभी डॉक्टर बाकी वो जो अपॉर्चुनिटी लोग एट द एज ऑफ 19 मतलब क्या रहेगा यार उस टाइम, 10th 12th स्टैंडर्ड समवेयर, मैट्रिक्स रहेगा उनके जमाने में, व्हाटएवर। बट जो अंडरस्टैंडिंग तुम इनको सुनोगे ना, इट तुम्हारा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द देहाती हिंदी for understanding it whenever he speaks business. You will understand कि भाई ये बिजनेस को जो commodity cycle है, commodity, he just plays in commodity. Only one thing that he has understood so far, commodities, different metals हो सकता है, different types of metals, बहुत सारे metals है, is मतलब total। तो उन्होंने ये 80 रुपया 90 रुपए का कई तो बायबैक ऑफर किया था, which was rejected because of Anil Singhvi, and now Vedanta touched almost 400. Now it would have come down 320 still.
देखो वहां से वेदांता कहा कितना रैली हुआ था 75 से लेके, एंड वेदांता इज नॉट अ स्मॉल कैप। ये कोई चिल्लर कंपनी नहीं है जो मैं भी घुमा सकता हूं। मैंने आपको ग्रुप वन में एक कंपनी घुमा के दिखाया था, वो क्या ट्री हाउस था। ट्री हाउस का शेयर मैंने वो क्या इधर उधर घुमा। ट्री हाउस का भी जब चाहिए तब दे बोलो, अपना जाले भी घुमा सकते हैं उसको। 70 से लेके 415 ऑन अ मार्केट कैप ऑफ, दिस इज मार्केट कैप इज नाउ 1,19,000 crore. It's massive. So buyback as a concept can be very, very powerful tool for a company's promoters to increase their stake and to make a confidence statement to the world at large. However, there are certain chore promoters also in our country. नियत में खोट रहते हैं इनके, और ये लोग भी बायबैक यूज करते हैं। और व्हेन द रियलिटी इज समथिंग, रियली कंपनी का सी बायबैक कब वैल्यूएबल रहता है, जब कंपनी का रियल वर्थ बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और लेकिन मार्केट में शेयर बहुत सस्ते में बिक रहा है, शेयर्स आर हाईली अंडर वैल्यूड, दैट टाइम यू डू द बायबैक, यू कैन क्रिएट अ मैसिव मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ। एप्पल का जो $467 बिलियन का बायबैक किया है एप्पल ने, इट इज सेड दैट एप्पल हैज created a profit of approximately $1 trillion out of buyback. इंडिया का जीडीपी, टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, इज 2.8 ट्रिलियन। एप्पल हैज क्रिएट, वो 467 बिलियन एप्पल ने खरीदे शेयर्स, उनकी आज की वैल्यू 1.5 ट्रिलियन के लगभग है। मतलब एप्पल ने खुद के लिए नहीं, पूरे इन्वेस्टर्स के लिए कमाया। ऑब्वियसली एप्पल हैज क्रिएटेड $1 trillion वैल्यू बिकॉज ऑफ बायबैक्स। इट्स नॉट अ जोक $1 trillion क्रिएट करना, हमारे पूरे मार्केट का वैल्यू नहीं यार उतना जो एप्पल ने खुद अकेले बायबैक में क्रिएट कर लिया, $1 trillion ऑफ वैल्यूएशन। तो बट क्योंकि वहां पे जो काम करने वाले लोग थे वो नियत वाले लोग थे, बहुत बार घटिया पब्लिक भी रहता है। सच में कंपनी का वैल्यू बहुत नीचे है, बट शेयर का प्राइस फॉल हो सकता है। प्रिवेंट द फॉल इन द प्राइस ऑफ द शेयर, उसका फैंसी लैंग्वेज बोलते हैं, टू अरेस्ट द फॉल इन द प्राइस ऑफ द शेयर, टू प्रिवेंट अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द शेयर, मेनी प्रमोटर्स डू अनाउंस द बायबैक्स जस्ट टू इंडिकेट टू द मार्केट दैट रियल वैल्यू इज मच मोर। ये बहुत चलता था हमारे कंट्री में। सेबी ने अभी एक रूल लाया है विच सेज दैट वंस यू अनाउंस अ बायबैक देयर इज अ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू मस्ट बाय बैक। सिर्फ तुमने ऐसा स्टेटमेंट किया हम इतने शेयर्स बायबैक करेंगे, नहीं चलेगा, तुम्हारा रियल इंटेंट भी होना चाहिए बायबैक करने का। सो यू मस्ट बायबैक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स एल्स यू गेट अ पेनल्टी। So there is a minimum number which is around 50% of the shares that you are willing to buy back. ये सिलेबस मैंने जो भी बकबक किया आज, एक भी चीज सिलेबस में नहीं है। ये मैंने जो भी बकबक किया इसका एक लाइन सिलेबस में है। कंपनी परचेसिंग इट्स ओन शेयर्स इज नोन एज बायबैक ऑफ शेयर्स। थैंक यू। Anyone has a doubt on any concept? इसके अकाउंटिंग एंट्रीज और लीगल इफेक्ट्स कल एक्सप्लेन करता हूं।